Hare Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna. We'll all welcome Aishwarya Proji with loudly chanting one Hare Krishna Mahamantra. So I'll request all of the students that have joined today to chant one Hare Krishna Mahamantra for Prabhuji. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Welcome, Prabhuji. Thank you so much for joining us today. So basically, I'll just give a short introduction of Prabhuji, and maybe Prabhuji, you can continue with your own introduction later on. Vijay Prabhuji, is it fine if we continue with English or Hindi? Is fine. Hare Krishna, Mother Danda Pram. Are you getting my voice? Hare Krishna? Hare Krishna, yes, Is it Prabhuji. audible to you? Yes, Prabhuji. Okay, yeah. Actually, Mother, we are having our so many students over here. I thought let us join them for particular classes. So first of all, thank you very much for your participation. And now, secondly, I'm not unable to get with Aishwarya Bhavan. Okay. Yeah. Hare Krishna, Aishwarya. Not a problem. Okay. Students, you may sit. Please allow me just for 1 minute so that they can then peacefully they can hear. बघितलं किती जण आहेत? आलं मी Please आता. mute if someone is okay. Done. थोड़ा थोड़ा अंदर हो जाओ. Hare Krishna, bro. So sorry. Are you getting my voice? Hare Krishna? Yes, Prabhuji, you're audible. Yes. So, Hare Krishna, Arti Mataji, are you there? Yes, Prabhuji, you're audible. Now you can give introduction approach actually. This all students are ready to hear actually. Yes. They all are eager to hear the experience of Prabhuji. So, yeah, you may start now. Thank you. Okay. Thank you, Prabhuji. So I'm very happy to see a lot of students. So I start with Prabhuji's introduction. So whatever information I have, I see that Prabhuji has completed his bachelor's in computer engineering from University of Pune, and currently he is working as a senior machine learning engineer at one US-based firm in Pune. So I would request Aishwarya Prabhuji to give further introduction, the detailed one. Over to you, Prabhuji. Thank you so much for this introduction. I think this should be fine. I don't have many things to share. I just have one thing to share that I completed when I was in college, I completed 3 different internships in different domains that helped me in my future. At the same time, when I was in my college, I also focused a lot on developing my communication and also spirituality. I started reading spiritual books that also really helped me a lot. Right. So you are basically from Prabhuji? I'm from Pune. Okay. Prabhuji, I'll start with what the structure and the agenda of today's session. I'll just give it in short. In the beginning, we'll have a normal question answer session. So I'll ask the questions, and later on we'll have some time for students, and student can raise their questions, and then maybe we can have an interactive session. So my first question for you is because now we have students majorly from 11th and 12th, and students who are aspiring to have a career in
IT field. So I just wanted to know from you, like, what is your opinion about the mindset of students while doing their 11th and 12th grades, and what how should they plan for their careers in IT? So what should be their mindset during that period? Okay, that's a great question. Thanks for this wonderful question. कृष्णा जी, Yes. हरीला, सॉरी फॉर इंटरप्शन। और जी, अगर आप हिंदी में बात कर पाए, जैसे मैं बच्चों बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो हिंदी में बच्चों को ज्यादा अच्छे समझ में आ सकता है, अगर पॉसिबल हो पाए तो। यस, बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी, हिंदी तो मेरी मातृभाषा है, मुझे और भी अच्छा लगेगा हिंदी में बात करने में। थैंक यू प्रवीण। तो मैंने जब 11th 12th में मैं था, तो मैंने एक स्ट्रैटेजी फॉलो की थी। आई थिंक ये सभी बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि हमारे लिए बोर्ड्स की एग्जाम भी बहुत मैटर करती है, और एट द सेम टाइम जेडबलई भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है जो जेडबलई की एग्जाम देते ही नहीं है। तो ऐसा ना किया जाए, जेडबलई की एग्जाम को अटेम्प्ट किया जाए। साल में 2 अटेम्प्ट होते हैं, वो तो 100% देना चाहिए। क्योंकि मेरे घर के अंदर ही ऐसे केसेस हुए हैं कि बहुत ब्रिलियंट ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, जस्ट बिकॉज उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो अटेम्प्ट नहीं कर पाए, और उनको 1 साल रिपीट करना पड़ा बिकॉज बिना जेडबलई के एडमिशन नहीं मिल रहा था कहीं पे भी। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारी हेल्थ भी अच्छी रहनी चाहिए, और हमारी पढ़ाई भी अच्छे से होनी चाहिए जेडबलई के लिए, और हमें बोर्ड एग्जाम्स भी अच्छे से देने चाहिए। तो हमारा सबसे पहला माइंडसेट जो रहना चाहिए वो ये है कि हम फोकस के साथ पढ़ाई करें। और जेडबलई की प्रिपरेशन और जेडबलई की प्रिपरेशन और जो 12th की प्रिपरेशन होती है, वो दोनों अलग अलग नहीं होती है। बस इतना सा ही डिफरेंस होता है कि जब आप 12th के लिए पढ़ाई कर रहे होते हो तो आपको थियोरेटिकल आंसर्स देने होते हैं, तो आपको थियोरेटिकली आंसर लिखना आना चाहिए अच्छे से। और जब आप जेडबलई की प्रिपरेशन कर रहे हो, तब आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, आपको एक्सपर्टीज सारे टॉपिक्स में नहीं चाहिए। आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को छोड़ सकते हो, चलेगा वो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज वो नहीं, बहुत सारे लोग इतना याद नहीं रख पाते। तो जो जो आपको मतलब पूरे सिलेबस का सिर्फ 40% अगर आपको बहुत अच्छे से आता है, तो आप इजीली एग्जाम क्रैक कर सकते हो। तो आपको ये देखना चाहिए पूरे 2 साल में कि आपको कौन से टॉपिक्स जो है वो अच्छे से समझ में आते हैं, जिसके कारण आप जेडबलई में अच्छे मार्क्स लेके आ पाओगे। क्योंकि अगर एक बार जेडबलई में अच्छे मार्क्स आ गए, तो आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है। और अच्छा कॉलेज जो रहता है वो एक अच्छे करियर की शुरुआत के लिए बहुत अच्छा रहता है। अगर हम अच्छे कॉलेज में नहीं भी जाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर हम अच्छे कॉलेज में जाते हैं तो उससे बेनिफिट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमें हमें प्रयास करना चाहिए कि 12वीं के जो बोर्ड की एग्जाम्स होती है, उसके लिए हमें लिखने की अच्छी हैबिट होनी चाहिए, जो कि आई थिंक विजय प्रभु जो है वो अच्छे से करवा ही रहे हैं आप लोगों के लिए। और जेडबलई के लिए भी आप डेप्थ में जाइए, लेकिन उन्हीं टॉपिक्स में डेप्थ में जाइए जो आपको अच्छे लगते हैं और जिनको आपको लगता है आप एग्जाम में अच्छे से प्रिपेयर करके आंसर्स दे पाओगे। तो उतना ही टॉपिक्स करिए, और अच्छे कॉलेज की वेट कीजिए। अननेसेसरी जो आपको टॉपिक्स नहीं आते हैं, उनके क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी नहीं करना व्हेन यू गिव योर एग्जाम। सो थोड़ी स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन रहेगी 12th के लिए, तो बोर्ड और 12th का जो जेडबलई रहता है वो दोनों अच्छे से निकल जाता है। तो ये माइंडसेट बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू प्रोजी, ये आपका आंसर बहुत ही हेल्पफुल था। सबसे मेन तो आपने जो डिटेल में बताया कि जैसे द पॉइंट दैट कि जेडबलई की एग्जाम देना कितना इम्पोर्टेंट है टू अपियर फॉर द जेडबलई एग्जाम, एंड सेकेंड इज कि अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है टू स्टार्ट अ करियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था आई थिंक स्टूडेंट्स के लिए जानने के लिए। तो आई मूव अहेड विथ द सेकेंड क्वेश्चन। फिरोज, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जब भी आप आपका इंजीनियरिंग कर रहे थे तो आपने मेंशन किया कि आपने 3 इंटर्नशिप्स की है। तो आपने हाउ डिड यू अप्रोच टू हैव दोज इंटर्नशिप, लाइक कैसे आपने प्रिपेयर किया और कैसे आपने अचीव किए ये इंटर्नशिप्स? मेरा ना नेचर शुरू से थोड़ा एक्सट्रोवर्ट रहा है। मैं किसी से भी मिलता था ना, तो मैं उनसे दोस्ती कर लेता था, उनसे बात कर लेता था। और जो टीचर्स रहते थे या फिर जो भी इंडस्ट्री से लोग आते थे, मैं खुद से आगे रह के उनसे बात करके किसी ना किसी तरह से कनेक्शन बिठाने की कोशिश करता था। तो एक जो मेरी पहली इंटर्नशिप मिली थी मुझे, वो मुझे एक हमारे कॉलेज के अंदर एक वर्कशॉप हुई थी। तो वो जो वर्कशॉप जिन्होंने डिलीवर की थी, मैं उन्हीं के पास जाके उनसे बात किया मैंने कि मुझे आपसे जो आपने सिखाया है, उन्होंने हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग जो रहती है वो सिखाई थी वहाँ पे हमें। तो मेरा बहुत मन था कि इस फील्ड को थोड़ा और आगे परस्यू किया जाए। मैंने उनसे पूछा कि आपके पास फर्दर कुछ इंटर्नशिप्स या ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज हैं क्या।
जिससे मैं और ज्यादा अच्छे से सीख सकता हूँ। तो एक तो मैंने उनको अप्रोच किया था, तो वैसे मुझे एक इंटर्नशिप मिल गई। दूसरी इंटर्नशिप जो थी वो मेरी एक इंटर्नशिप फेयर के अंदर, यहाँ पे पुणे के अंदर बहुत सारे इंटर्नशिप फेयर्स होते हैं। तो जब हम लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं आज के समय में, तो हमें इंटर्नशिप अगर हमें चाहिए तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि हमारे पास में एक क्लियर माइंडसेट होना चाहिए कि हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमें इंटर्नशिप करनी है। और एक बार हमारा माइंड फिक्स होता है कि इंटर्नशिप करनी है, तो उसके बाद हम उसको ढूंढना शुरू करते हैं। अब वो जब फिक्स हो गया माइंड की करना है, फिर हम इंटर्नशिप ढूंढना शुरू करते हैं, तो हमें वो रास्ते मिलते हैं जहाँ पे इंटर्नशिप हमें मिल सकती हैं। तो फिर मुझे इंटर्नशिप फेयर्स के बारे में पता चला, मैंने दोस्तों से बात किया, दूसरे कॉलेज के फ्रेंड्स से बात किया, तो मुझे पता चला कि मेरे पास का जो कॉलेज है वीआईटी, मैं सियागढ़ कोंढवा में पढ़ा था, तो उसके पास में वीआईटी कॉलेज है, विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो मैंने वहां से पढ़ाई की। तो वहां पर मुझे पता चला कि उनका एक इंटर्नशिप फेयर हो रहा है। तो इंटर्नशिप फेयर में मैं गया, वहां पे बहुत सारे लोग आए हुए थे। तो उनसे मैंने मैंने जो भी काम किया था, मैं हमेशा ध्यान रखता था कि जब भी मैं कहीं जा रहा हूँ, तो मेरा सिर्फ रेज्यूमे ही नहीं प्रिपेयर करके लेके जाऊं, मैं जो उनको दिखा सकता हूँ जो मैंने एक्चुअली में बनाया है, वो बना हुआ प्रोजेक्ट उनको मैं दिखाता था, जिससे वो मेरे स्किल को इमीडिएटली जज कर लेते थे कि इसको ही बनाना आता है। जब जब कभी आप किसी को कुछ बना के दिखा देते हो ना, आपका इंटरव्यू वैसे ही क्लियर हो जाता है। आपको परेशानी ये रहती नहीं कि मेरा क्लियर होगा नहीं होगा कुछ भी। आप बना के लेके जाओ कि मैंने ये बनाया है, देखो आपको अगर इस उस सामने वाले को अगर वो स्किल की नीड होगी, तो आपको वैसे ही हायर कर लेंगे। तो मेरा सेकंड इंटर्नशिप जैसे मिला था। एंड थर्ड इंटर्नशिप के लिए मैंने एक कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम था, एक फर्म का, उसमें ज्वाइन किया था। तो जब मेरी उस कंपनी के सीईओ या फिर उसकी कंपनी के एमडी से जब बात हुई, तब उन्होंने जो काम मुझे बोले थे वो तो मैंने कर दिए। फिर मैंने उनसे ऐसी ही बात किया कि सर मुझे ये सब भी आता है, आपके कंपनी के अंदर और भी कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं क्या, मैं कुछ और भी कर सकता हूँ क्या इसके अलावा। तो जैसे ही उन्होंने वो ईगरनेस देखी, तो उन्होंने मुझे इंटर्नशिप ऑफर करी थी। तो वो मेरी पहली इंटर्नशिप थी जो डेटा एनालिटिक्स में थी। तो मैंने साइबर सिक्योरिटी, वेब डेवलपमेंट और मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स तीनों के अंदर अलग अलग समय पे इंटर्नशिप किया। और तीनों के लिए मैंने खुद से ईगरली ढूंढा, उनको लोगों को अप्रोच किया, बात किया। मैंने बिल्कुल भी नहीं शर्माया। मैं शर्म नहीं रखता हूँ। जब मुझे कुछ चाहिए मेरे लिए, तब मैं फिर सबसे बात करता हूँ, मुझे शर्म नहीं आती फिर, क्योंकि मुझे वो चाहिए, वो मेरी हेल्प करेगी, वो हेल्प मुझे करने वाला है। तो सबसे पहले ये हमेशा बहुत क्लियर होना चाहिए कि हमें माइंड से कि हमें शर्म नहीं करना है। वी हैव टू कीप अप्रोचिंग। एंड आपको दरवाजे खटखटाने हैं, काफी सारे खटखटाने हैं, एक दो खुलेंगे उसमें से आप अंदर चले जाओगे। दैट्स हाउ यू गेट जॉब्स एज वेल एज इंटर्नशिप्स। पर उसके लिए आपके पास पहले स्किल्स होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए आप क्या ढूंढ रहे हो, आप क्या ऑफर कर सकते हो, दोनों आपको पता होना चाहिए। मतलब सिर्फ आज मुझे इंटर्नशिप चाहिए लेकिन मुझे कुछ नहीं आता, तो ये तरीका ठीक नहीं है इंटर्नशिप ढूंढने के लिए। इंटर्नशिप ढूंढने के लिए हमारे पास में खुद के पास भी स्किल होना चाहिए जो हम उस कंपनी को ऑफर कर सके। तो जब हम उन्हें वो स्किल्स ऑफर करेंगे, तो वो हमें रिटर्न में एक्सपीरियंस देंगे। दैट्स हाउ इट वर्क्स, इट्स गिव एंड टेक। राइट प्रोजी। प्रोजी, जो आपने ये पॉइंट बोला कि हमारे पास भी वो स्किल्स होने चाहिए टू गिव टू द इंटर्नशिप, बट जनरली कैसे होता है कि जैसे इंटर्नशिप इज अ वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस एज अ प्रोफेशनल फॉर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा हेजिटेंट रहते हैं, और जैसे आपने बोला कि योर पर्सनल नेचर इज़ योर एक्सट्रोवर्ट, आप सोशली एक्टिव हो, आप बात करते हो। तो जनरली जो स्टूडेंट्स हैं वो हेजिटेंट रहते हैं बात करने के लिए, या फिर अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए, या फिर जो अपॉर्चुनिटीज आए आए हैं, जैसे आपने बोला कि कुछ ना कुछ करके आपको एक प्रूफ देना है आपके वर्क का, इफ यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी। तो फिर वो देने के लिए वो जो कॉन्फिडेंस है या फिर वो नॉन हेजिटेंट रहना, आपको मतलब क्या आप कुछ बता सकते हो कि हाउ टू इम्प्रूव ऑन दैट? ये तो एक्चुअली मेरा नेचर है, हर एक का पर्सनैलिटी होता है। तो मेरा पर्सनैलिटी थोड़ा एक्सट्रोवर्ट है। जिनका एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी नहीं है वो क्या कर सकते हैं आज के समय में। सबसे पहले तो जब आप अपना कुछ काम करते हो ना, डेवलप करते हो, कुछ बनाते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस उधर ही आ जाता है। आपको कॉन्फिडेंस लाने के लिए अलग से कोई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लास ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे जैसे काम करोगे, अच्छा काम छुपता नहीं है, अच्छा काम अपने आप बाहर आ जाता है। जैसे किसी की बुराई अपने आप फैल जाती है ना, अच्छा काम भी फैल जाता है। अगर आपने कुछ अच्छा काम किया है तो वो हो जाता है, लेकिन वो फैलता कैसे है उसके लिए आपको थोड़े एफर्ट्स खुद भी लेने पड़ते हैं। आप पहले शुरुआत कर सकते हैं ब्लॉग्स लिखने से। आपने जो कुछ भी लिख किया है उसको पहले ब्लॉग्स के फॉर्म में अपने कहीं पे भी डाल सकते हो। आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल एक अच्छी सी बना सकते हैं, लिंक्डइन के ऊपर अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करके सारी चीजें डाल सकते हैं। फिर उसके अलावा
उसके ऊपर ब्लॉग्स डाल सकते हैं आप। एक मीडियम करके वेबसाइट है, medium.com, वहां पे आर्टिकल लिख सकते हैं। एक सबस्टैक करके बहुत अच्छी कम्युनिटी है वहां पे। बेसिकली आपको अपना काम शोकेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि आज का जैसे वर्ल्ड जो है वो डिजिटल वर्ल्ड है, और उसमें चीजें बहुत रैपिडली फास्ट इधर उधर चली जाती है। वो समय अलग था जब इंफॉर्मेशन को फिजिकली ट्रांसफर करना पड़ता था। आज मैं कोई भी वीडियो डाल दूंगा इंटरनेट पे तो वो पूरे वर्ल्ड में कोई भी एक्सेस कर सकता है। ये इतना फास्ट हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। ओनली थिंग इज हमें डालना शुरू करना पड़ेगा। सो कंटेंट क्रिएशन इज टुडे समथिंग विच इज वेरी वेरी हेल्पफुल। तो कंटेंट क्रिएशन करके डालना चाहिए। फिर दूसरी बात, कम्युनिकेशन पे वर्क करना पड़ेगा आपको। कोई भी पर्सन रहेगा, एक छोटे से बच्चे को खाना खिलाने के लिए भी हमें कन्विंस करना पड़ता है, तभी वो बच्चा खाना भी खाता है। तो इसी तरह से कम्युनिकेशन तो वहां भी लगता है। तो हम यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि अरे मेरा नेचर मुझे इस चीज को स्टॉप कर रहा है। ऐसा जनरली होता नहीं, क्योंकि अगर हमें पता है कि हमें वो चीज अचीव करनी है तो हम लोग 100% वो चीज कर लेंगे। तो हमारे मन में क्लियर गोल होना चाहिए कि मुझे ये करना है। और दूसरा, उसके लिए रेडी भी रहना चाहिए, और जो भी हमें चाहिए उसके लिए हमारे पास स्किल्स तो होनी चाहिए। और वो शोकेस करने से वो चांसेस और बढ़ जाते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि आज अगर एक इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी कहीं पे भी ओपन होती है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अप्लाई करते हैं वो कितने सारे होते हैं। उसमें से आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे कि मुझे इसको लेना है। तो उसके लिए अगर कोई व्यक्ति है, उसका नेचर अगर शांत रहने का है, तो वो वैसे ही हाईलाइट नहीं हो पाता है। तो बोलना तो पड़ता है। और अगर आपका काम अच्छा रहेगा और आप बोल के बता भी देते हो तो आपकी चांसेस और बढ़ जाते हैं। दैट्स हाउ इट वर्क्स। राइट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रोजी दैट यू सेड कि हमें कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए हमें पहले अपने वर्क को दिखाना पड़ेगा। जैसे आपने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स भी बताए यहाँ पे, मीडियम, लिंक्डइन। आई थिंक अभी के जनरेशन में स्टूडेंट शुड बी अवेयर ऑफ दोज प्लेटफॉर्म्स एंड हाउ टू क्रिएट कंटेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। थैंक यू प्रोजी। आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो प्रोजी, Krishna. हाँ, यस प्रोजी। Krishna. Actually, on the behalf of student, I would like to ask one question actually. अभी क्या होता है, बहुत बार हमारे बहुत सारे एक्चुअली ब्रो, आर यू गेटिंग माय वॉइस? आपको मेरा आवाज एकदम क्लियरली आ रहा है? बिल्कुल क्लियर है यस। ब्रो। अभी होता क्या है, यस, अभी होता क्या है, जैसे मेरी इंस्टीट्यूट है, अब यहाँ पे मान लीजिए मेरे कुछ एक 8वीं का भी 10वीं का भी बच्चे भी है, क्योंकि इवनिंग में यही बैचेस चलते हैं, तो बाकी सारे बच्चे ऑनलाइन रहते हैं, बट ये सारे जो बच्चे यहाँ पे आते हैं, इन्होंने फाउंडेशन क्लासेस यहाँ पे लगाए हुए हैं। अब फाउंडेशन क्लासेस का मेन पर्पस इन्हें क्या लगता है कि आगे जाके अगर मान लो इनका 10th में ही अच्छे से फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा, तो 11th और 12th के टाइम पे ये बच्चों को ज्यादा चीजें समझ में आएंगी, और जो जेई और नीट का एग्जाम होता है उस एग्जाम को ये बच्चे इजीली क्रैक आउट कर सकते हैं। और स्पेसिफिकली जो हम आईआईटीज और एनआईटीज कहते हैं, उन कॉलेजेस में, या फिर गवर्नमेंट एमबीबीएस के कुछ कॉलेजेस होते हैं, ट्रिपल आईटीज है, बिट्स सैट के थ्रू, बिट्स पिलानी के आप अच्छे अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं, या फिर आप डीयू हो गया, एमयू हो गया, तो ऐसे बड़े बड़े कॉलेज में जा सकते हो, आप आईसर्स में जा सकते हो। इस परिभाषा से विद्यार्थी एक कुछ कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं। बट स्टिल बहुत बार विद्यार्थियों के मन में मैं ये बात देखता हूँ कि विद्यार्थी कुछ ट्यूशन कोचिंग क्लासेस इसके लिए भी लगाते हैं कि उन्हें लगता है कि 10th की मार्क्स बहुत रिक्वायर्ड है, अगर उन्हें लगता है कि अगर 10वीं में मुझे 99%, 98%, 97% अगर आ जाते हैं तो ही मैं दुनिया जीत सकता हूँ। तो आपके टाइम पे जब आप 10th में थे, तो सबसे पहले तो आपको कितने परसेंट थे, और आप किस सब्जेक्ट में अच्छे थे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मतलब अगर सच में आप अच्छे थे तो आप आईआईटी क्यों नहीं जा पाए, और अगर मान लीजिए आप अच्छे नहीं थे तो फिर आप डाटा साइंटिस्ट कैसे बने? ये मेरा क्वेश्चन आपसे। ओके, तो मुझे काफी सारे क्वेश्चन सुनने को मिले, जो जितना 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 याद रहेगा मैं बताता हूँ आपको। तो पहला प्रश्न आपने पूछा कि मेरे 10th में कितने मार्क्स थे। तो मेरे 10th में आउट ऑफ 10 8.8 सीजीपीए था। और मैं कौन से सब्जेक्ट में अच्छा था, तो मेरी मैथ्स मैथ्स एवरेज थी। इंग्लिश बहुत अच्छा था, साइंस अच्छा था, और कंप्यूटर साइंस बहुत अच्छा था। तो ये मेरा ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग था। तो मुझे कंप्यूटर्स में शुरू से ही इंटरेस्ट रहा है प्रभु। अ, मैं जब छोटा था ना, मैं यूकेजी में जब था तब हमारे घर पे कंप्यूटर आया था। मेरे फादर 1999 में कंप्यूटर लेके घर पे आ चुके थे, और मुझे उसको यूज करने का परमिशन भी था। तो तब से मैंने उसको एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, उसको यूज करना शुरू किया। मैं देखता था कि क्या है,
और वैसे करके एक्सप्लोर करना शुरू किया। तो और मुझे गैजेट्स के साथ में थोड़ा सा फिजिटिंग करना अच्छा लगता था। मैं काफ़ी एक्टिव था इन चीज़ों में। अभी भी मतलब मैं काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोरेशन करने के लिए बहुत मन करता है, अब कर नहीं पाता हूँ, वो अलग बात है। ना कमिंग टू द क्वेश्चन ऑफ आईआईटी वगैरह का क्यों नहीं हो पाया, तो मुझे लगता है कि भगवान की मर्जी है कि वो नहीं हो पाया। और एट द सेम टाइम मैं जब 11th 12th में था तब हमारे यहाँ पे आपके जितने अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स थे नहीं। पहली चीज़। दूसरा ये कि मैं कोटा में गया था, 1 साल के लिए मैंने 12th में वहाँ पे पढ़ाई की। बट जब मैं वहाँ गया ना तो कैसा रहता है कि आपकी जो पढ़ाई करने की पद्धति होती है ना वो कंसिस्टेंट रहती है 2 साल, तो आप अच्छे से क्रैक कर पाते हो। मेरे साथ ये हुआ कि मैं जब 11th में था तो मैंने होम टाउन से पढ़ाई किया, और फिर 11th के एंड में मेरा जो बेस्ट फ्रेंड था जिसके साथ में मैं नर्सरी से बड़ा होके खेल के 12th में 11th में भी हम लोग साथ में थे, हम लोग सेम बेंच पे बैठते थे। वो और उसका पूरा फैमिली एक साथ एक ही एक्सीडेंट में खत्म हो गए। तो वो मेरे लिए इमोशनली बहुत ज्यादा वो सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, क्योंकि हम दोनों का घर भी आमने सामने था, हम स्कूल भी सेम जाते थे, और हम लोग सेम साइकिल से आना जाना, वैसा सिचुएशन था। तो मैं इमोशनली बहुत ज्यादा इन्वॉल्व था उसके साथ में, और एकदम से दोस्ती एकदम से खत्म हो गई, पूरा परिवार चले गया, मम्मी पापा दादी भाई दोस्त सब एक साथ ऐसे हो गया। तो वो मुझे थोड़ा डिफिकल्ट रहा 1 साल वो मैनेज करना, तो इसलिए मैं कोटा शिफ्ट हो गया। लेकिन जब मैं कोटा गया तो वहां पे देखा कि वहां की जो पढ़ाई करने की स्टाइल है वो मैं उतना अच्छे से पिकअप नहीं कर पाया, और मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया। तो मुझे जेडब्ल्यू में मार्क्स तो अच्छे आए थे, बट मुझे एनआईटी आईआईटी वगैरह कुछ मिला नहीं। तो मैंने पुणे सिलेक्ट किया, पुणे पढ़ाई करने के लिए। और जब मैं यहाँ रहा ना तो मैंने 4 साल बहुत मेहनत की। मैं आई थिंक आपको पता होगा, मैं कॉलेज में जब था तो मैं ट्यूशंस पढ़ाता था अपने से छोटे बच्चों को। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तक मैंने ट्यूशंस पढ़ाए, फोर्थ ईयर मतलब मैंने इंटर्नशिप्स भी की, ट्यूशंस भी पढ़ाए पैरेलल में। मतलब मैं कॉलेज के अंदर फेमस था इन चीज़ों के लिए। मेरा खुद का यूट्यूब चैनल था, उस पर मैं कॉलेज के जो भी टफ टफ प्रॉब्लम्स रहते थे उसको यूट्यूब पे उसका सोल्यूशन बना के डाल देता था। तो पूरे कॉलेज में सबको पता था कि हमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई टफ प्रॉब्लम है, तो वो ऐश्वर्य से सॉल्व करने को मिल जाएगी। तो मैंने मेहनत करना कभी नहीं छोड़ी। और जब मैं फाइनल ईयर में आया तब मुझे 3 कंपनी से ऑफर थे, इन्फोसिस, एक्सेंचर और कॉग्निजेंट। ये कॉलेज के अंदर से था, और कॉलेज के बाहर 4 कंपनियों के अलग अलग ऑफर्स थे। तो मेरे को टोटल 7 कंपनीज थी जिसमें से मुझे सिलेक्ट करना था, जिसमें से 2 स्टार्टअप्स थे, 3 एमएनसीज थी। तो ऐसे करके जब मैंने देखा कि एक कंपनी है जो मुझे मशीन लर्निंग में काम करने को डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी दे रही है, क्योंकि एज अ फ्रेशर आपको सिलेक्ट करने को नहीं मिलता है कि आपको कहाँ पे जॉब मिलेगा या जो भी है। तो दैट वाज द पॉइंट ऑफ टाइम जब मैंने ये सिलेक्ट किया कि मुझे इन्फोसिस ज्वाइन करना है, बिकॉज वहाँ पे मुझे डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी मशीन लर्निंग में काम करने को मिल रही थी। तो तब से मैंने मशीन लर्निंग में काम करना शुरू किया, और आज तक मैं मशीन लर्निंग में काम कर रहा हूँ। दैट्स हाउ माई जर्नी वॉज। थैंक यू सो मच गुरु, थैंक यू सो मच। एक्चुअली ऑल स्टूडेंट्स आर लाइक एवरेज स्टूडेंट्स, तो उनको हमेशा से लगता है कि हम तो आईआईटी तक जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, अभी तो हम 10th में हैं। तो उनको कभी ऐसा पूरा, जैसे आपने बोला कि आप आपके टाइम पे आपका 100% देते थे, आप हमेशा ही प्रयास करते रहते थे। तो इन बच्चों को क्या लगता है ना कि अभी तक तो हम वहां पे पहुंच नहीं पाए, उनको खुद को उनका लेवल नहीं पता। तो ये जरूरी नहीं है कि हम बस आईआईटी के अंदर घुसेंगे तो ही हम कुछ बड़ा कर पाएंगे। आपके एग्जाम्पल के थ्रू हम ये सब सीख रहे हैं कि अगर हम कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहते हैं फिर भी हम आगे जा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हम सभी लोगों के लिए कि हम अभी से मेहनत करते रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रोजी। प्रोजी एक चीज बताता हूँ आपको। मेरा जो मैनेजर था ना वो आईआईटी बॉम्बे से था। आईआईटी बॉम्बे आपको पता है इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। और उसी ने मेरा इंटरव्यू लिया था, और उसने मुझे इंटरव्यू क्लियर करके अंदर लेके आया था वो बंदा। और हमारी जो कंपनी है जिसमें अभी मैं काम करता हूँ, वो बहुत अच्छे स्मार्ट लोगों को लेती है। मेरे साथ में जो काम करते हैं वो बहुत अच्छे अच्छे जगह से हैं, बहुत पढ़ाई करे हुए लोग और बहुत स्मार्ट लोग हैं। तो मैंने देखा, ये मेरे एग्जाम्पल से आपको बता सकता हूँ कि हार्डवर्क बीट्स टैलेंट, वेयर टैलेंट फेल्स टू वर्क हार्ड। ये एक इंग्लिश में एक कहावत है कि जब आप हार्डवर्क बहुत अच्छे से करते हो ना तो आप टैलेंट को भी पीछे छोड़ सकते हो। और हार्डवर्क से हो सकता है कि आपको थोड़ा समय लगेगा वहां पहुंचने में जहाँ पे टैलेंटेड लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन आप भी पहुंच सकते हो, ऐसा नहीं है। मैं आपको अभी भी बताऊंगा। मुझे मेरा ट्यूसडे को 10 बजे मेरा गूगल के साथ में इंटरव्यू राउंड 1 है फॉर इंडिया लोकेशन। और मेटा यानी फेसबुक जो हम लोग यूज करते हैं
उसके साथ में मेरा इंटरव्यू राउंड शेड्यूल एक एक इंटरव्यू हो चुका है, उन्होंने मुझे समय दिया है मुझे नेक्स्ट अवेलेबिलिटी बताने के लिए, जो कि लंदन के लिए रहेगा। फेसबुक मेटा लंदन की लोकेशन के लिए इंटरव्यू है। तो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि मैं तो एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। मतलब मैं टॉपर नहीं था कि मेरे 10/10 CGPA है या फिर ऐसा कुछ है। मेरा नॉर्मल रहा है, एवरेज रहा है। मुझे ना मस्ती भी करने में इंटरेस्ट था स्कूल के टाइम पे। मैंने पढ़ाई भी खूब करी है, मस्तियाँ भी खूब करी है। मुझे म्यूजिक में भी बहुत इंटरेस्ट था, तो मुझे इंस्ट्रूमेंट्स बजाना आता है, मैं सिंगिंग करता हूँ। तो मैंने कभी भी अपने सिर्फ पढ़ाई के लिए अपने हॉबीज को नहीं छोड़ा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको जितना समय मिला है उसको आप बस बेस्ट यूटिलाइज कर लो और आप अपने बेस्ट दे दो। उसके बाद भगवान सब अपने आप अरेंज कर देते हैं, आपकी जो किस्मत में लिखा है वो सब अपने आप मिलते जाता है। तो बस ये है कि कई लोग मेहनत करने से चूक जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। मतलब मेरा एक छोटा भाई है, उसको मैं हमेशा एक चीज बोलता था कि 11th और 12th, जब वो भी 11th 12th से उसका लास्ट ईयर ही 12th कंप्लीट हुआ है, तो उसको मैं एक ही चीज बोलता था कि 12th के एंड में ये मत बोलना कि यार थोड़ी सी मेहनत और कर लेता मैं तो मैं आज वहां होता। बस वो सिचुएशन लाइफ में कभी नहीं आने देना। और नॉट जस्ट फॉर 12th, वॉट एवर यू डू इन लाइफ, आपकी लाइफ में ये एक मेरा पर्सनल एक मतलब एक रूल है जो मैं खुद के लिए लगाता हूँ कि आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं अपना उस जगह पे 100% दे रहा हूँ, ताकि बाद में ये नहीं बोलने को हो कि अरे मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता। वो सब चीजें फालतू की बात होती है। यस मुझे एक्चुअली अंडरस्टूड। तो और एक क्वेश्चन था मेरा, सॉरी मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, ये मेरा आखिरी क्वेश्चन होगा, लेकिन इस सेशन का ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा मेरे बच्चों के लिए जो मेरे साथ अभी आपका सेशन अटेंड कर रहे हैं। मेरा आवाज आपको क्लियर आ रहा है प्रोजी, करेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ, बिल्कुल 100%। यस। एक्चुअली जैसे आपने फेसबुक कहा, फिर मेटा कहा, उससे मुझे याद आया हमारे इंस्टीट्यूट के जितने सारे बच्चे हैं, हर एक बच्चे जैसे कि फेसबुक पे या फिर इंस्टा पे, और एक चीज है स्नैपचैट में, हाँ स्नैपचैट पे सारे बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे तरह से एक्टिव है। और हर एक बच्चा मतलब इवन तो मैं अगर रैंडमली कॉल घुमा दूंगा किसी पेरेंट्स को तो बोलेंगे कोई एक टाइम का खाना खाना भूल जाता है, लेकिन वो अपडेटेड रहना चाहता है। उनके यहाँ पे अच्छा लोकेशन नहीं तो वो लोग टेरिस के ऊपर जाके वो थोड़ा सा ऊपर का नीला नीला बादल रहता है उसके, मतलब एक्चुअली आई एम नॉट जोकिंग एट ऑल। तो ये हंस भी रहे, मतलब ये एग्री करते हैं इन चीजों से। तो ये इतना ज्यादा एक्टिव है कि 7वीं 8वीं या 9वीं का बच्चा है ना, वो भी ये सोच रहा है कि अगर मान लो मेरा प्रोफाइल अच्छा नहीं है, मेरे बाल ऊपर नहीं है, मैं गाड़ी के सामने खड़ा नहीं हूँ, या फिर मेरा मतलब, तो उसको ऐसा इफेक्टिव फील नहीं हो रहा है। तो क्या आपके समय पे भी आप ऐसे कर रहे थे? और अगर ऐसे करने से भी अगर हम हमारे जीवन में सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर हर व्यक्ति सक्सेसफुल क्यों नहीं है? और अभी इस करंट टाइम पे इन बच्चों ने इन चीजों को कंटिन्यू करना चाहिए या फिर एक अच्छा पर्सन कहकर आगे उभरने के लिए मतलब क्या करना चाहिए इन लोगों ने? मतलब मेरा क्वेश्चन था आपसे। प्रभु जी, व्हाट्सएप का स्टेटस या फिर इंस्टाग्राम की स्टोरी इतनी मैटर नहीं करती है जितनी अपनी लाइफ का स्टेटस और लाइफ की स्टोरी मैटर करती है। आप अच्छा फोटो नहीं भी डालोगे ना 2 साल, जैसे मैं, आपने देखा होगा मेरा लास्ट पोस्ट जो इंस्टाग्राम पे है ना, अभी अभी मेरे फोन में इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह कुछ नहीं है। स्नैपचैट पे तो मैंने आज भी अकाउंट नहीं बनाया है। मुझे स्नैपचैट जो है ना वो सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग एप्लीकेशन लगता है। उसका रिकमेंडेशन सिस्टम भी मुझे इतना पसंद नहीं, बिकॉज वो बहुत वल्गर कंटेंट जो हमारे लिए अच्छा नहीं है वो काफी ज्यादा दिखाता है हमें। तो वो मैं तो बिल्कुल नहीं देखता हूँ स्नैपचैट। मेरे मेरे भाई के फोन में से भी वो उड़ा दिया था। तो ये कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए, जैसे स्नैपचैट तो मतलब दिस शुड बी द लास्ट एप्लीकेशन ऑन योर फोन टू इंस्टॉल। रही बात इंस्टाग्राम और फेसबुक की, तो मुझे लगता है कि तो सोशली एक्टिव रहने में कोई बुराई नहीं है। सोशल एक्टिव रहना चाहिए, दोस्तों से बात करनी चाहिए, बिकॉज हर समय इंसान पढ़ भी नहीं सकता। तो लेकिन उसका तरीका क्या है? अरे वाह, तालियां बज गई। एक्चुअली यार यार स्टूडेंट्स आर क्लैपिंग, जैसे आपने बोला कि थोड़ा एक्टिव रहना चाहता है, इनको लग रहा है कि आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कृष्णा ब्रो सही। आपका वीडियो ऑन है। बिल्कुल बिल्कुल 100%। मैं तो बोलता हूँ कि आपको एक्टिव रहना चाहिए। देयर शुड नॉट बी अ हाँ प्रॉब्लम इन हैविंग योर अकाउंट ऑन अरे सुन लो फेसबुक भाई, एंड ढंग से इंस्टाग्राम। सुनो।
इंस्टाग्राम और यस फेसबुक का अकाउंट होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, लेकिन ना हर एक चीज का टाइम होता है। जैसे पूरे टाइम नहीं चलाना है वो। हमेशा अपने जो इम्पोर्टेंट जो काम होते हैं ना, जैसे पढ़ाई हो गई, खेलना हो गया, दोस्तों के साथ में फेस टू फेस मिलना हो गया, साइकिलिंग हो गई, सिंगिंग, म्यूजिक, ऐसी अगर एक्टिविटीज में आपको इंटरेस्ट है तो ये सब दिन भर आप करो। उसके बाद में जब रात को सोने वाले हो ना, उसके पहले 15-20 मिनट, आधा घंटा फोन चलाया, एंड देन यू शुड स्लीप, नो प्रॉब्लम। बट यू शुड अंडरस्टैंड कि आधे घंटे से ज्यादा हमें डेली नहीं यूज करना है। अगर आप उससे ज्यादा यूज कर रहे हो ना, देर शुड बी अ ब्रेक। सब जैसे मेरे फोन के अंदर, मेरे भाई के फोन के अंदर मैंने खुद ने पेरेंटल कंट्रोल डाला था, तो उसमें रात को 10 बजे से लेके सुबह की 7 बजे तक वो फोन में और कोई भी एप्लीकेशन नहीं चल सकता था। और वो 11th-12th में उसको बहुत हेल्प किया, क्योंकि वो होने से वो कंट्रोल में था। बिकॉज क्या होता है, हमारा जो माइंड है ना प्रभु, ये हमें ये थोड़ा सा शांत नहीं रहने देता है अगर हम फोन ज्यादा यूज करते हैं तो। तो हमें ये चीज का थोड़ा सा कॉन्शियस यूज करना चाहिए। प्रेफरेबली ऑलवेज टीनेज के अंदर हमें फोन के अंदर एक पेरेंटल कंट्रोल एप्लीकेशन होनी चाहिए, जिसके अंदर परमिशंस भी होना चाहिए, लेकिन लिमिटेड अलाउड होनी चाहिए चीजें, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, एवरीथिंग हाफ एन आवर, ओके, नो प्रॉब्लम। बाकी समय फिर पूरी रियल दुनिया में भी देखो थोड़ा क्या चल रहा है। दैट रियली हेल्प्स, आई वुड से, बिकॉज माइंडलेस रील स्क्रॉलिंग जब हम लोग करते रहते हैं ना, तो वो टाइम इतना इतना जल्दी और इतना सारा चले जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता है। सो और एक और स्ट्रेटेजी ये भी हो सकती है कि आप पूरे वीक मत यूज करो, सैटरडे या फिर संडे का एक दिन रख लो, आप 3-4 घंटे कंटिन्यूस यूज कर लो उसको, और देन यू यूज इट एंड यू डिलीट दैट एप्लीकेशन अगेन। तो मन शांत रहेगा कि हाँ, यूज करने को भी मिला। बट आई टेल यू वन थिंग प्रभु, एक चीज ध्यान रखना लाइफ में, कुछ भी एक्सट्रीम में नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज, पढ़ाई भी एक्सट्रीम में नहीं होनी चाहिए, खेलना कूदना भी एक्सट्रीम में नहीं होना चाहिए। युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न व बोधस्य योगो भवति दुःखः, जो श्लोक है भगवत गीता के अंदर, वो हमें लाइफ में ट्राई करना चाहिए अप्लाई करने के लिए, कि आहार विहार एंड युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु, तो तीनों का बैलेंस होना चाहिए। और बैलेंस तभी आता है जब हम लोग थोड़ा कंट्रोल में रहते हैं। अनरिस्ट्रिक्टेड तो कुछ नहीं होना चाहिए। और मैं बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ कि स्नैपचैट यूज किया जाए। आई विल बी वेरी ओपन हियर। Instagram is okay, Facebook is also okay, Snapchat is no, and that too 30-40 minutes per day should be fine, not beyond that. थैंक यू सो मच प्रीति, थैंक यू सो मच। एक्चुअली होता क्या है ना बच्चों के स्टूडेंट्स, अब होता क्या बच्चों के केस में, ये बच्चों के केस में उनको दिन में समय ही मिलता है 1-2 घंटे या 3 घंटे। तो कैसे अब हमारा जो लाइफ, जैसे मैं टीचर, मान लीजिए आप एक प्रोफेशन में है, अंतरंगा माता जी प्रोफेशन में मान लीजिए, तो हमारे पास ऐसा हो सकता है कि हम 8-9 घंटे वर्क करके बोर हो जाते हैं। लेकिन इन बच्चों का कैसे रहता है कि इनको स्कूल के बाद में ट्यूशन करने पड़ते हैं, बाद में पढ़ाई करना पड़ता है। तो इसीलिए जैसे कि आपने जैसे करेक्ट कहा है कि इन लोगों के लिए 5-10 मिनट भी अगर यूज करते हैं, अगर है मान लो, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट उसको एकदम एक्सेसिव वे में ले जाना, जैसे कि आज ही एक पेरेंट्स मुझे कह रहे थे कि मेरा बेटा शाम को स्कूल से आने के बाद में मोबाइल लेता है और रील देख रहा है, और रील ऐसे देख रहा है कि 2-3 घंटे रील देख रहा है। मतलब 2-3 घंटे, और एक 10th का ही बच्चा है। अब नाम मैं ले लूंगा तो सब हंसने लगेंगे, बट सच में ऐसा स्थिति है। तो इन लोगों को क्या लग रहा है, जो इमीडिएट प्लेजर है वो इमीडिएट प्लेजर ही सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज अगर इमीडिएट प्लेजर के पीछे भाग रहे, लेकिन कल जाके जब उनको किस बड़े पोजीशन पे जाने की मतलब इच्छा रहेगी या फिर, तो लेकिन समय नहीं बचेगा, क्योंकि इतना समय यहाँ पे उन्होंने व्यतीत कर दिया। बट जैसे आपने कहा कि किसी भी चीज में हमें एक्सट्रीम नहीं जाना, थोड़ा अगर हम ये थोड़ा करते हैं, थोड़ा वो करते हैं, फिर से अगर हम हमारे वर्क पे आते हैं, जैसे इनका वर्क है विद्यार्जन करना, तो एग्जैक्टली करेक्ट, सही है, आपने सही बोला। और जो मेरा और एक क्वेश्चन था नाउ, जैसे आपने भगवद गीता का कोई श्लोक कहा, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टसु कर्मसु समथिंग, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैं थोड़ा सा टॉपिक को डिवाइड करना चाहूंगा। ये आपने तिलक भी लगाया जैसे कि आज मैं देख पा रहा हूँ, और आपके गले में मुझे तुलसी का माला भी दिख रहा है, जितना कि मैं देख पा रहा हूँ। तो इन सारी चीजों का आपके जीवन में कितना कंट्रीब्यूशन रहा है आगे जाके इतने बड़ी कंपनी एमएनसी को अचीव करने में? एट द सेम टाइम जैसे आपने बोला कि आप बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक फेसबुक है, ऐसे कंपनीज को भी अप्रोच आउट कर रहे हैं, तो आपका
कितना कंट्रीब्यूशन रहा है स्पिरिचुअलिटी का, या फिर ये जो भी आप भगवद गीता के ज्ञान को अभी जो आप हमें बता रहे थे, उन चीजों को कितना कंट्रीब्यूशन रहा है आपके जीवन उस स्तर पे वो? स्कूल में हम जाते थे ना, तो वहां पे हमें, हमारा जो स्कूल था वो एक संस्कार शिक्षा अकादमी के नाम से स्कूल था। तो बच्चे श्लोक वगैरह सिखाए जाते थे। तो मुझे अपब्रिंगिंग वैसी रही है। तो मैं जब छोटा था, 3 साल या 4 साल से लेके बड़ा जब तक हुआ, तो हम लोगों को काफी सारे श्लोक सिखाना, और घर में हमारे काफी सारे पंडित जी आते थे और हमें श्लोक वगैरह सिखाते थे, बोलते थे। तो मुझे मुझे वो इनफैक्ट जब भी मैं एक श्लोक मुझे बोलते थे कि आप ये श्लोक याद करो, और जब नेक्स्ट टाइम वो मुझसे मिलते थे तो मुझे कुछ तो मिठाई प्रसाद वगैरह से कुछ देते थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो मैं याद करता था और वो सब चीजें उन्हें वापस सुनाता था। तो ये जो सूत्र है ना प्रभु जी, ये संस्कृत संस्कृत और जो हमारे शास्त्र हैं, इनमें कुछ कुछ नॉलेज ऐसा छुपा हुआ है जो हमें बहुत आगे लेके जाता है। जो स्टीफन कॉवी करके एक पर्सन है, मोटिवेशनल स्पीकर, उसकी एक बुक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। उसने बोला है वो सारी की सारी 7 हैबिट्स जो है ना, मैंने भगवत गीता से ली है। तो हमारे जो शास्त्र है ना प्रभु जी, दे आर वेरी 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 पोटेंट। उनके अंदर बहुत कुछ है। द ओनली थिंग इज कि हमारे एजुकेशन सिस्टम से उसे सिस्टमैटिकली हटाया गया है, और हमें आज उसका एक्सेस नहीं है। तो हमें थोड़ा एफर्ट लेना चाहिए, और जब हमें वो एफर्ट लेते हैं तो वो नॉलेज जब हमें मिलता है ना, हमें बहुत हेल्प होती है। और मैं आज जहाँ पे हूँ, वो लेवल पे सस्टेन करने के लिए जो स्किल्स लगते हैं, सिर्फ कोडिंग ही जरूरी नहीं होती है लाइफ में। लोगों से बातचीत करना, और उसके अलावा जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, बिकॉज हम लोग जब ऑफिस में काम करते हैं तो काफी ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो हमें बहुत स्ट्रेस आता है, तो कैसे मैनेज करेंगे। बहुत ज्यादा सक्सेस आ जाता है तो उसको कैसे हैंडल करना। जैसे एक कॉलेज के अंदर, आईआईटीज के अंदर स्पेशली मैंने देखा है कि जब बच्चे जो बहुत ज्यादा टॉपर बच्चे होते हैं, वो कभी एक दो बार भी फेल हो जाते हैं ना, तो उन अंदर एक बुक है हमारी संस्कृत की, आई थिंक 8th क्लास में होती है सीबीएसई के अंदर। तो उसके अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे श्लोक हैं। जैसे जिसमें से एक जो मुझे बहुत याद है, बहुत अच्छा याद है, कि जिसमें उसका मतलब ये था कि हमें चेष्टा तो करनी पड़ती है। जिस तरह से एक सिंह के मुख के अंदर मृग जो है खुद से नहीं जाता, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य मुखे प्रविशन्ति मृगा। तो ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें एफर्ट्स मार के चीजें करनी होती है। और जैसे एक और श्लोक था 10th क्लास के 8th क्लास के अंदर ही, सुभाषितानी में, काकः कृष्ण पिकः कृष्ण को भेदो पिक काकयो वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिक पिक। उसका मतलब ये होता है कि काकः कृष्ण पिकः कृष्ण, कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। को भेदो पिक काकयो, दोनों में भेद क्या है, अंतर क्या है। वसंत समये प्राप्ते, तो जब वसंत का ऋतु आती है, वसंत समय प्राप्ते काकह काकह पिका पिका, जब वो अपना दोनों मुंह खोलते हैं ना, उससे पता चल जाता है कि ये कोयल है और ये कौवा है। तो ऐसे हमें लेसन्स भी सीखने को मिलते हैं। तो ये हमें लोगों को पहचानने की क्षमता आती है। बहुत कुछ है प्रभु जी इसके अंदर। तो श्री बहुत बहुत हेल्पफुल रहते हैं हमारे शास्त्रों का अध्ययन करना हमें। और थोड़ा सा समय निकाल के मैं आज भी पढ़ता हूँ, मुझे बहुत हेल्प करता है। जी, मेरा आज के सेशन का एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपसे। जैसे कि आपका थर्ड लास्ट क्वेश्चन। यस एक्चुअली जस्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने हमारे कोचिंग में एक रूल मतलब इम्प्लीमेंट किया है। मैं 1 जनवरी को लोनी में आया था, और 1 जनवरी से पहले मैं यहाँ पे कभी आया भी नहीं और मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं था। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने स्टार्ट किया था मेरी एक स्टूडेंट से। आज हमारे पास हमारी 10th की बैच फुल हो गई है और हमने एडमिशन बंद कर दिया है, और 4 एडमिशन हमारे अभी होल्ड पे है जिनको हम एडमिशन नहीं दे रहे। तो इतनी अच्छी स्थिति है, लेकिन इसमें हमने एक चीज मेंटेन रखी है, वो मतलब मेडिटेशन। जैसे हम क्या करते हैं, हमारी जो 11th की बैच है, 11th के बैच में हम लोग जेडब्ल्यू के लिए 30 एडमिशन देते हैं, नीट के लिए 30 एडमिशन देते हैं। आपको ये जान के आश्चर्य हो जाएगा, लास्ट 2.5 महीने 3 महीने हो गए मुझे यहाँ पे आके, हमारी जेई की बैच फुल हो चुकी है। अब हमने जेई के एडमिशन क्लोज कर दिए ऑफिशियली।
अब हमारी नीट के एडमिशन 15 से ऊपर पहुंच गए हैं, क्योंकि आपके बच्चे ज्यादा नीट देना प्रेफरेबल नहीं करते, इतना मैं देख पा रहा हूँ। लेकिन हमने सबके लिए एक रूल लगाया है, वो मतलब कंपलसरी जो बच्चा द्वारिकाधीश करियर पॉइंट ज्वाइन करता है, उन्हें सुबह 5 बजे उठकर 5 से 5:15 के बीच में, यही जो मीटिंग आईडी अभी आप जिसपे सारा सब कुछ चल रहा है जूम, उस मीटिंग आईडी पे सारे बच्चों को लॉग इन करना पड़ता है। और बच्चे 5 बजे से लेके 5:15 के बीच में 15 मिनट या 12-13 मिनट बच्चे मेडिटेशन करते हैं। और हम उन्हें कहते हैं कि कुछ एक हरे कृष्ण महामंत्र है, जैसे कि आपको भी पता होगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र है, हम बच्चों को बोलते हैं। लेकिन मैं एक चीज देख पा रहा हूँ कि जो मेरे इंस्टीट्यूट के टॉपर्स हैं, जो अच्छा पढ़ाई करना जानते हैं, वो लोग उठ के सुबह 5 बजे ज्वाइन भी कर लेते हैं और ये मेडिटेशन भी कर लेते हैं। और मेडिटेशन करने के बाद में फिर हम क्या करते हैं, 5:15 से 6:30 बजे तक बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं अपने वीडियो ऑन करके, और मैं इनको ऑब्जर्व करता रहता हूँ। 11 के बच्चे मेजोरिटी में पढ़ाई करते हैं, और हम ये चीज अभी कंपलसरी कर रहे हैं। कंपलसरी करने के बाद भी कुछ बच्चे नहीं, अभी एकदम एक्सट्रीम में कंपलसरी कर रहे हैं, इसीलिए हमने पेरेंट्स मीटिंग में रखा है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता था इसके पीछे के बैकग्राउंड के रिगार्डिंग, आप उस स्तर तक अभी पहुंचे हैं, तो क्या, पहला क्वेश्चन मेरा, क्या आप भी आपके जीवन में मेडिटेशन करते हैं? पहला, अगर आप पहले का आंसर करते तो मैं दूसरा पूछता हूँ, क्या करते हैं? यस यस, मैं भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता हूँ। ओके, तो क्या उससे आपको फायदा हुआ है? बहुत ज्यादा। आज मैं जहाँ पे पहुंचा हूँ ना प्रभु जी, वो उसी के कारण हूँ। ओके, और आप एक कब से करते आ रहे हैं? मुझे 11 साल हो गए प्रभु जी, 12 साल हो गए आज, 12 years। ओके, मतलब 11-12 साल, मतलब जो आप माइट भी इंजीनियरिंग की जो स्टार्टिंग में रहेंगे, इंजीनियरिंग के या फिर फर्स्ट ईयर, 2013 से लेके 2025 तक मैंने जब किया है। ओके ओके। अब ये बच्चे जो, इनको जब हम महत्व बताते हैं, सुबह 5 बजे उठ के आप ब्रह्म मुहूर्त में थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, जिससे कि आपका मतलब स्मरण शक्ति भी बढ़ेगा, और जिससे कि जब अगर आप इसको रेगुलरली कंटिन्यू करते हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारा मन हमारे कंट्रोल में आ जाता है। तो आपको इस चीज की कितनी वास्तविकता लगती है, क्या सच में ऐसे होता है? हाँ प्रभु जी, आपका होता क्या है। कहना है इसके रिगार्डिंग? होता है, दो चीजें रहती है प्रभु जी। और एक तो एक एक थोड़ी मेच्योरिटी और जो गंभीरता ठहराव जीवन में जो आता है, वो एज के साथ भी आता है। जैसे जैसे हम एज में आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे एक एज का भी इफेक्ट रहता है, और एज का इफेक्ट के साथ साथ जब हम लोग जब करते हैं तो हमें और बेटर इफेक्ट होते हैं। तो जैसे जैसे अगर आज आज आप जब नहीं भी करोगे, फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति जो जब नहीं कर रहा है, तो भी उसके जीवन में उसे जो मिलना है वो मिलेगा, ठीक है। लेकिन जहाँ पे उसे 60 या 65 मिलने वाला होगा, जब के साथ में उसे 100 मिलेगा, इतना डिफरेंस आ जाता है। करेक्ट करेक्ट, यस आई अंडरस्टैंड। एक्चुअली करंटली 30 स्टूडेंट है मेरे, तो सुबह 5 बजे उठ के, जिस समय चेक कर 25 से 30 स्टूडेंट रहते हैं, तो सुबह उठ के मेडिटेशन का प्रयास करते हैं। कुछ बच्चे वीडियो ऑन करके करते हैं, कुछ लोग बच्चे वीडियो ऑफ करके करते हैं। तो इसलिए मैं चाहता था कि स्पेसिफिकली जब बच्चे आपसे सुनेंगे तो उन्हें पता चलेगा इसका महत्व। मुझे, मैं और एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा, लास्ट अगर मान लीजिए मेडिटेशन कर रहे हैं, क्वेश्चन। नहीं नहीं, दिस इज सब क्वेश्चन इट इज सब क्वेश्चन। अरे मजाक कर रहा हूँ, आप कितने भी क्वेश्चन चाहे तो पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यस यस यस। तो जब बच्चा मेडिटेशन कर रहा है, तो मैं अब आपसे प्रक्रिया जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी आपकी तरह सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ। और रोजी, इसी आप वजह से ऑलरेडी मैं इतने आपसे, सक्सेसफुल हो। आपने एक बच्चे से लेके इतने सारे बैच बना दिए, इतने सारे। फिर भी मैं नीचे बैठा हूँ, देखिए आप तो, मतलब मजाक बोल रहा हूँ। वो तो प्रोफेशन प्रोफेशन रहता है, बट मैं आपसे बस, सुबह उठने के बाद में जैसे आप भी मेडिटेशन करते रहेंगे, सो व्हाट इज द एग्जैक्ट राइट वे? मतलब कुछ लोग क्या करते हैं ना, करने के लिए सर ने बोला इसलिए कर रहे हैं, लेकिन अगर सच में उनको उनका स्मरण शक्ति बढ़ाना है, इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ाना है, अगर उन लोगों को उनकी रैंकिंग में थोड़ा सा और बेहतरीन वे में अच्छी जगह पे पहुंचना है, तो आप इन बच्चों को क्या गाइड करेंगे? या फिर जो यहाँ पे अभी जैसे सुजीत शिंदे है, विक्रांत डोके, ये सारे बच्चे सेकंड ईयर थर्ड ईयर में हैं। अब इन बच्चों के लिए मैं क्या करता हूँ, हर मंडे को द्वारिकाधीश करियर पॉइंट में इन बच्चों के लिए ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू पैनल में अरेंज करता हूँ, और इनके क्लासेस में फ्री में मैंने साइड से लेता हूँ। तो मेरे पास कुछ मेजोरिटी में बच्चे आते हैं, जिन बच्चों को मैं अभी इंटरव्यू के लिए ट्रेन कर रहा हूँ, और साइड बाय साइड में उनको भगवत में गाइड कर रहा हूँ। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो सारे बच्चे हैं, जो मतलब 10 से लेके वो फाइनल ईयर तक जाने वाले बच्चे, वो किस वे से मेडिटेशन करे, जिससे कि आगे जाके उनके कंपनी लाइफ में, जेडब्ल्यू नीट के लाइफ में, या फिर सब कुछ हो जाने के बाद में जब उनकी फैमिली लाइफ हो,
उन सारी चीजों में इफेक्टिव वे से आगे बढ़े। तो क्या वे होना चाहिए, आप जरा प्रोसेस बताएंगे तो मैं बहुत अच्छा होगा। तो जी जिस तरह से आप उन्हें गाइड कर रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता कि मुझे उसको बताने की जरूरत है। तो मुझे लगता है अगर आपको वो बच्चे आपको फॉलो करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे पाथ पे बढ़ेंगे आगे। आप जिस तरह से उन्हें पर्सनली गाइड कर रहे हो ना, वन ऑन वन एकदम, सुबह 5 o'clock उनके लिए सेशंस अरेंज करना, और ये बहुत हेल्पफुल होता है। जितना हो सकता है हमें सुबह जप करना चाहिए। ये बात मुझ पे भी लागू है कि सुबह जल्दी उठ के जप करना चाहिए। उससे उससे हमारा स्मरण शक्ति बढ़ता है, हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है, माइंड शार्प होता है, हेल्थ भी अच्छी रहती है, और हमारे इमोशंस कंट्रोल में रहते हैं, हमारा फोकस अच्छा बढ़ता है पढ़ाई के लिए। तो हमें सुबह जल्दी उठ के जप करना चाहिए, और वो हमें बहुत हेल्प करता है। और दूसरा फायदा ये भी रहता है प्रभु जी कि सुबह अगर हमें जल्दी उठना है ना, तो उससे हमें ओवरऑल लाइफ में जो ग्रोथ मिलती है वो बहुत अच्छी मिलती है, बिकॉज सुबह का समय होता है, सब सो रहे होते हैं, पूरा संसार शांत होता है, हम फोकस के साथ में चीजें कर पाते हैं। तो और दूसरी चीज ये भी है कि हम जितना लेट उठते हैं ना, उतना उतना ज्यादा दिन का समय निकल चुका होता है। तो अगर आप कोई व्यक्ति 9 बजे उठेगा और अपना दिन शुरू करेगा, और कोई 5 बजे उठ के शुरू करेगा ना, तो 5 बजे जो अगर कोई व्यक्ति उठता है, तो उसका 9 बजे तक का बहुत सारा काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका होता है। तो उसके लिए दिन बहुत लंबा हो जाता है, वो बहुत सारे काम अचीव कर सकता है अगर वो सुबह जल्दी उठता है तो सुबह जल्दी उठ के जब करने से हमारा सारा चीजें कंट्रोल में आता है, माइंड माइंड बॉडी सब कुछ कंट्रोल में आता है, और हम बाकी हमारे सारे काम अच्छे से अचीव कर पाते हैं। दुनिया के जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियों के बेस्ट सीईओज हैं, वो लोग खुद भी पर्सनली जल्दी उठ के सारे काम करते हैं। कितने ही सारे अमेरिका के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज है जैसे एप्पल वगैरह, उसके जो सीईओज है ना, उनके रिप्लाई सुबह सुबह 4 बजे भी लोगों को उन्होंने किए हैं। मतलब वो इतना जल्दी उठते हैं तभी तो वो रिप्लाई कर पाते हैं, है कि नहीं? इसलिए सुबह जल्दी उठना, सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करना बहुत हेल्पफुल होता है, वेरी यूजफुल। और मेडिटेशन करने से और हेल्पफुल हो जाता है वो। एक्चुअली इसीलिए मैं भी प्रयास करता हूँ कि जब मैं बच्चों के साथ उठता हूँ सुबह, तो मैं और मेरे बच्चे सब लोग हम लोग प्रयास करते हैं कि वीडियो ऑन करके इस मेडिटेशन के प्रोसेस को एटलीस्ट 12 से 13 मिनट तक ले जाए। और ये हम सक्सेसफुली 1 तारीख से 1 जनवरी से मोस्ट प्रॉब्लली हमने स्टार्ट किया था, आगे पीछे 4-5 दिन हो सकते हैं, तब से लेके आज तक हम इसे कंटिन्यू कर रहे हैं। एक दो दो दिन मेरे को याद है जितना, एक दिन मेरा हेल्थ खराब था इसलिए वो कर नहीं पाया था। उसके अलावा एक दिन 2 दिन में पुणे गया था, तो मैं ट्रैवलिंग में था तो नहीं कर पाया था। अदरवाइज बाकी 1 जनवरी के बाद से अब तक हम लोग रेगुलरली कर रहे हैं। और मेरा एक स्टूडेंट है, उसका नाम है अभी स्नेहांकित है, तो ही इज रेगुलर पक्का एट 5 AM, जो होता ही है, जो मेडिटेशन करता है। और मेरा अद्वैत नाम का और एक दूसरा स्टूडेंट है, ये 2 स्टूडेंट है। और आपको जान के मतलब आश्चर्य लगेगा कि बोथ आर टॉपर्स। और तो वो ये सुबह उठ के मतलब वो हाँ सुबह उठ के किसी भी हालत में, मतलब वो मेडिटेशन मेरे साथ करते ही है। और मेडिटेशन छोड़ दी, मतलब उसके बाद में 6:30 से 7 बजे तक जब तक मीटिंग ऑन है, तब तक उनका कंडेंस स्टडी रहता है। ऐसा भी नहीं कि कुछ नाम के लिए कर रहे हैं। इसीलिए रिसेंटली एक स्टूडेंट ने डॉक्टर होमी बाबा का जो एग्जामिनेशन रहता है, उस एग्जामिनेशन को उसने लोरी में रिसेंटली क्रैक आउट किया है, जो स्कूल से पहला बच्चा है। तो फाउंडेशन में बच्चों को आगे बढ़ने के लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। मॉर्निंग में उठ के स्टडी करना बहुत जरूरी है, समझना होगा। तो ये हम समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन तो अगर वो समझते नहीं। लेकिन जब आपके जैसे जो कुछ पर्सन है जो ऑलरेडी अपने जीवन में बहुत सक्सेस के स्तर पे है, अभी कुछ कुछ बच्चे जैसे कि मैं जब बच्चों का मतलब जो मेरे इंजीनियरिंग के 3rd ईयर के जो बच्चे हैं, जिनको मैं थोड़ा गाइड कर रहा हूँ, उनको भी मैंने ये बात बोला कि हमें लगता है बहुत बार कि ये क्या करना है, ये मेडिटेशन से क्या होता है, लेकिन छोटी छोटी चीजों से ही हम बड़ी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं अगर हम उसे अच्छे से करें तो ये बात मैं खुद भी मानता हूँ। सो आई एम रियली ग्रेटफुल कि आपने इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर हमारे बच्चों के लिए दिए, और सारे बच्चों को एटलीस्ट एक बात पता चली। इनको अब आज तक ऐसे लग रहा होगा कि क्या होता है सुबह उठना, लेकिन उनको भी आज दिख रहा है कि हाँ, संसार के बहुत सारे, इस दुनिया के बहुत सारे सक्सेसफुल लोग सुबह उठ रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, खुद को समय दे रहे हैं। ये बहुत रिक्वायर्ड है। तो मेरे प्रश्नों का संग खत्म हो चुका, मतलब संशय जो था वो खत्म हो चुका है। बट जो हमारे इंजीनियरिंग के छात्र हैं, जो व्याकुलता से बैठे हैं कि वो कुछ प्रश्न पूछ पाएंगे, उनका मैंने बहुत सारा समय ले लिया है। तो अभी अभी मैं इसके बाद में कुछ नहीं कहूंगा। अंतरा अंतरंगा शक्ति माता जी, आर देयर? Yes, Proji. Yeah, please forgive me. I have No. taken you so much of time. So now, the remaining question you may ask to from Prabhuji actually. So we all will hear their answers. But कैसा बच्चों का भी और 5 मिनट है क्लास का, तो इनको मैं छोड़ दूंगा। लेकिन
हम हमारा मीटिंग भी कंटिन्यू कर सकते हैं अगर बच्चों को और डाउट है, अगर प्रभु जी अलाउ करें तो। मैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं प्रो जी। प्रोजी मोर और लेस जो क्वेश्चंस थे, मतलब मोस्ट ऑफ देम आर कवर्ड बाय विजय प्रभु जी। सो ज्यादा तो क्वेश्चंस नहीं है। मे बी अगर स्टूडेंट्स को कोई क्वेश्चंस है रिलेटेड टू योर डोमेन, स्पेसिफिकली अबाउट योर मशीन लर्निंग एंड साइबर सिक्योरिटी एंड ऑल दैट, तो आई थिंक स्टूडेंट्स क्वेश्चंस पूछ सकते हैं चैट में या फिर हैंड रेज करके। ओंकार क्षीरसागर का एक क्वेश्चन चैट में है। मैं वो ले सकता हूँ, मैं पहले बच्चों के क्वेश्चन लेने हैं, कैसे करना है? प्रोजी वी कैन गो वन बाय वन, जो चैट में है वो क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो तब तक। Okay, so Omkar Shirsagar, if you are here in the meeting, um, अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं ओंकार? यू आर नॉट एबल टू, ओके, नो प्रॉब्लम। देखिए हरे मशीन कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। सो सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक्चुअली अभी बच्चों को जाने का समय हो गया, लेकिन एक दो बच्चों के ऐसे क्वेश्चंस थे, एक्चुअली ऐसा क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए, बट दे वर हैविंग क्वेश्चंस, तो सोचा मैंने आपसे जेन्युइनली पूछ लेता हूँ। बच्चों का ऐसा कहना है कि आपका आपके 12th में कितने परसेंट थे, ऐसे बच्चों का कहना है। तो जी मेरे 82% थे, 410 आउट ऑफ 500। ओके ओके ओके, 82%, ओके। और प्रोजेक्ट आपका मतलब आपने सीईटी जेडबलई सब दिया था या फिर बस सीईटी दिया था? मैं एक्चुअली मध्य प्रदेश से हूँ, तो हमारे यहाँ पे सीईटी एग्जाम एज अ एग्जाम नहीं होता है। हमको महाराष्ट्र में एडमिशन के लिए, जेडबलई के लिए आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट का कोटा होता है जो 10% का रहता है। मुझे उसके थ्रू एडमिशन मिला था, तो मैंने सिर्फ जेडबलई दिया था, और मुझे पता नहीं था उस समय कि महाराष्ट्र सीटी के लिए मैं दे सकता हूँ, नहीं तो मैं वो जरूर देता। ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। नहीं मुझे, बट स्टिल व्हाट यू हैव डन एंड नाउ, जब अभी सारे बच्चे हैं यहाँ पे, तो मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ कि जितना मैंने ऐश्वर्य उपाध्याय प्रभु जी को देखा है, मैं प्रभु जी को बहुत सालों से जानता हूँ एक्चुअली। मतलब ये मेरे सीनियर है ऐसे मैं कहूँगा। और जैसे मैंने उनको देखा है, पुणे के अंतर्गत एक मंदिर है इस्कॉन एनबीसीसी, जो कात्रज के नजदीक है, जो पुणे का सेकंड मोस्ट विजिटेड प्लेस माना जाता है। और वहां के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है हीज ग्रेस राधेश्याम प्रभु जी। तो प्रभु जी के सर पे राधेश्याम प्रभु जी का पर्सनली हाथ था। और जब प्रभु जी वाइस पे रहते थे तो राधेश्याम प्रभु ने प्रभु जी को पर्सनली कुछ गिफ्ट्स भी दिए थे, बुक्स, इतना मैं जानता हूँ। और जिस वजह से आपको अगर पता नहीं होगा तो बड़े बड़े कॉलेजेस में, सिंहगढ़ हो गया, डीवाई पाटिल हो गया, फिर और भी जो पीआईसीटी जैसे बड़े बड़े जो कॉलेजेस है, वहां पे प्रभु जी को बुलाया जाता है गाइडेंस के लिए कि कैसे आगे जाके बच्चों ने करियर में एक्सेल करना चाहिए। अगर कोई बच्चा आईटी में है, अगर आपको पता होगा, तो वीआईटी, पीआईसीटी, ये जो सारे कॉलेजेस है ना, ये सेकंड टॉप लेवल के कॉलेजेस है पुणे के। अगर वहां पे किसी गेस्ट पर्सन को बुलाया जा रहा है इन सारी चीजों के गाइडेंस के लिए, और वो पर्सन वहां पे जाके जब मेडिटेशन कहता है तो लोग उसको फॉलो करते हैं, लेकिन इनिशियल लेवल पे उनको उसका इंपॉर्टेंस नहीं पता होता है, हम हमारे रूट्स को भूल जाते हैं। तो एक्चुअली गुरु जी, आज आपका आना हमारे लिए इतना ऑस्पिशियस है कि एटलीस्ट जो कुछ बच्चे अब तक मन में ही इस दुविधा में थे कि हम इस मेडिटेशन को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या क्या करना चाहिए, एटलीस्ट करेंगे। तो ये जो कहा जाता है ना कि सक्सेसफुल पर्सन के वर्ड्स में भी एक अपना वजन रहता है, तो ये मैं वहां यहाँ पे देख पा रहा हूँ। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल। कल से मैं भी और अच्छी तरह से और अटेंटिवनेस से आपके दिए हुए शब्दों को फॉलो करने का प्रयास करूंगा और बच्चों को गाइड करने का प्रयास करूंगा। सो हमारे साइड से थैंक यू वेरी मच। और आपके 12th के मार्क्स अच्छे थे, क्योंकि जितना मैं जानता हूँ, आपसे लेके 10 साल 12 साल पहले 12th में 82% लाना वॉज नॉट इजी जोक, मुझे पता है बातें। तो इसीलिए आपके जो भी परसेंट है प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। 82 मतलब रेयर रेयर लोगों को मिलते थे। अभी मिल जाते हैं एनसीईआरटी के बच्चों को, स्टेट बोर्ड के बच्चों को 98 97, इधर भी रहेंगे बहुत सारे 90 के अबव, लेकिन उस टाइम में जो परसेंट निकलते थे वो बहुत रेयर थे, क्योंकि बहुत पढ़ाई करना पड़ता जितना मैं जानता हूँ। सो थैंक यू सो मच। जैसे आपने बोला था कि हार्डवर्क अगर हम करेंगे तो हम टैलेंट को भी बीट कर सकते हैं, तो एक्चुअली में यू आर टैलेंटेड ऑल्सो एंड यू आर डूइंग हार्ड वर्क ऑल्सो, बिकॉज ऑफ विच आप इतने कम एज में सक्सेस इस चोटी पे आप पहुंच चुके हैं।
Thank you very much, Guruji. I'm really grateful towards you. Thank you very much. Now, other Thank you, questions. Guruji. Antara, yes. अंतरंगा माता जी, जस्ट गुरुजी एक स्मॉल चीज, बस मैं एक मिनट बस गुरुजी, एक मिनट बस आपको होल्ड करना पड़ेगा. म्यूट म्यूट. एक्चुअली गुरुजी मेरा एक बच्चा है, मैंने आपको स्नेहांकित के बारे में बोला था, जिसने अभी डॉक्टर होमियोपैथ का एग्जाम क्रैक किया है, तो यही वो बच्चा है. तो अभी ये आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता है, तो मैं इसको थोड़ा माइक दे रहा हूँ, तो आपको इजीली पूछ पाएगा क्वेश्चन. जोर से पूछ. हरे कृष्ण बाबू जी. हरे कृष्णा. As though we are, yes sir. As we have, you said that we have seen many successful persons who do morning study and they are really successful in their lives. But we also see many people who say that they are night persons and they studied at night, still they were successful in their life. So, is there really a need of morning study? And if there is, then how it can be helpful or how it can be more effective in our daily lives than night study? I had this question. प्रोजेक्ट कैसा रहता है ना, मैं आपको फिजियोलॉजिकली जो चेंजेस हमारी बॉडी में हमारी बॉडी में जो चेंजेस होते हैं ना रात के समय पे, उसका जो रिलेशन है वो हमारी बॉडी की एक सर्केडियन रिदम नाम की एक चीज होती है. सर्केडियन रिदम जो होती है वो हमारे सन के साथ कनेक्टेड होती है. सर्केडियन रिदम हमारी बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक होती है. बायोलॉजिकल क्लॉक अगर हमारी सन के साथ अलाइंड है ना, तो हमारी बॉडी 100% पे ऑपरेट करती है. ठीक है. तो जो लोग रात को जल्दी सो जाते हैं ना, वो लोग होते हैं जो रात को 8 बजे के बाद में स्क्रीन नहीं देखते, ना टीवी ना फोन. तो उनका जो माइंड रहता है ना वो धीरे 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 स्लो डाउन होके 10 o'clock 11 o'clock तक आराम से सो जाता है. तो जो लोग रात को काफी सारा स्क्रीन देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, ये सब चीजें जो ज्यादा करते हैं ना, तो उनका माइंड जो रहता है वो काफी हाइपर एक्टिव स्टेट में चले जाता है. तो उन्हें ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ रहा हूँ, मुझे बहुत सारी चीजें समझ में आ रही है, लेकिन वो उतना डीप स्टडी उतना लेवल पे हो नहीं पाता है. क्योंकि मैं भी आपकी तरह 12th में मैंने बहुत पढ़ाई की है, और मैं भी करता था पढ़ाई. तो मैंने पर्सनली देखा कि अगर आपका वेदर अच्छा है, मतलब जैसे मैं कोटा में रहता था, तो कोटा में हमारे -1 -2 इतना टेम्परेचर जाता था. तो ठंड में उठना पॉसिबल नहीं होता था, बिकॉज बहुत ज्यादा ठंडी होती थी, सच में भी बहुत ज्यादा. तो वो अगर वैसा समय है तो आप रात को पढ़ाई कर सकते हो. रात को जल्दी नई नींद अगर आ रही है तो आप रात को जाग कर पढ़ाई कर सकते हो, और सुबह थोड़ा लेट उठ सकते हो, दैट इज ओके. बट अगर गर्मी का समय है, बरसात का समय है ना, तो रिलेटिवली सुबह सुबह उठना ईजी होता है. तो सुबह उठने का तरीका सुबह उठने पे फोकस करना नहीं होता है. सुबह उठने का सबसे पहला रूल होता है, आपको जल्दी सोने पे फोकस करना है. जितना जल्दी हो सकता है आप डिनर कीजिए. 7 o'clock to 8 o'clock के बीच में आपका डिनर कंप्लीट कर लीजिए. और 8 o'clock के बाद में आप फोन मत देखिए. यू कैन रीड योर बुक्स, यू कैन गो फॉर अ वॉक, यू कैन रीड बुक्स, डू वट एवर प्लीजेज यू. जस्ट 10 o'clock के अराउंड आप सोने का ट्राई कीजिए. तो आपको सुबह उठने के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा. और विद्यार्थी जीवन में भी और जॉब के जीवन में भी अच्छी क्वालिटी की नींद और अच्छी क्वांटिटी की नींद होना जरूरी है. तो जो रात को 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच की जो नींद होती है ना, वो सबसे अच्छी नींद मानी जाती है. 1 से 3 के बीच की जो नींद होती है ना, वो भी बहुत अच्छी नींद मानी जाती है. और 3 से 6 की जो बीच की नींद होती है ना, वो समय होता है जब हमें उठना होता है. और 6 बजे के बाद की जो नींद होती है ना, वो हमारी एक्चुअली एनर्जी पूरी ड्रेन आउट करती है, वो अपने अपने को हेल्प नहीं करती बहुत ज्यादा. तो अगर हम लोग सुबह 6 बजे भी उठना शुरू कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हमारे लिए वो बहुत अच्छा होता है. मतलब आप 4 बजे नहीं भी उठ पा रहे हो, 5 बजे नहीं भी उठ पा रहे हो, एटलीस्ट बेयर मिनिमम 6 o'clock 5:30 6 o'clock तक तो उठने की कोशिश कीजिए. और फोकस शुड नॉट बी ऑन गेटिंग अप अर्ली, फोकस शुड बी मोर ऑन स्लीपिंग अर्ली. तो आप जब जल्दी जल्दी सोएंगे तो आपकी बॉडी को बहुत अच्छा रेस्ट मिलेगा. और जब आपकी बॉडी वेल रेस्टेड रहेगी ना, तो आप सारा चीज फोकस के साथ कर सकते हो, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपके तो क्वेश्चन का आंसर थैंक यू मिला? वेरी मच गुरुजी. मिला क्या? Yes, sir. हाँ मिल गया बोल रहा है. यस. एक्चुअली वन मोर स्टूडेंट इज हैविंग अदर क्वेश्चन. क्या है जल्दी से, क्योंकि 8 बजे हमें जाना है, आपके पेरेंट्स बाहर आके रुके. हरे कृष्णा सर. हरे कृष्णा. तो मेरा आपसे कहना था कि आप इतने सक्सेसफुल हो चुके हैं, तो आप
आप जो पढ़ाई करते थे वो आपको जब समझ में नहीं आता था तो आपका जो समझने का टेक्निक है वो क्या होता था? मैं उस समय अपने टीचर्स के साथ क्वेश्चन पूछता था और गूगल पे यूट्यूब पे उसके क्वेश्चन के आंसर्स फाइंड आउट करता था। आज के समय में तो इन्फॉर्मेशन आपको बहुत इजीली अवेलेबल है। आज आप चैट जीपीटी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ के अपना आंसर ले सकते हो। यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारे टीचर्स हैं जो अपने क्वेश्चन को आंसर करते हैं। सबसे पहला आपका जो गो टू प्लेस होनी चाहिए वो होनी चाहिए विजय प्रभु। आपको विजय प्रभु से पूछना चाहिए। अगर आपको उनका आंसर से कन्विंस हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आपको आगे भी आपकी क्वेश्चन को परस्यू करना चाहिए। देयर शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, बिकॉज आई ऑलवेज यूज टू आस्क क्वेश्चंस टू माय टीचर्स। और अगर मुझे वो आंसर नहीं मिलते थे तो मैं कहीं और से भी परस्यू करता था, लेकिन मैं हमेशा क्वेश्चंस को दिमाग में रख के करता रहता था। और आई टेल यू वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आज मैं सीगेट टेक्नोलॉजीज करके कंपनी है, मैं उसमें काम करता हूँ। सीगेट हार्ड डिस्क मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो जब हार्ड डिस्क बनती है ना, तो हार्ड डिस्क में फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, सेमीकंडक्टर और सब कुछ आ जाता है। माइनिंग वगैरह सब कुछ उस टेक्नोलॉजी, वो सारी टेक्नोलॉजी वो हार्ड डिस्क को मैन्युफैक्चर करने में आती है। और कंप्यूटर साइंस भी उसके अंदर आती है, नैनो टेक्नोलॉजी भी आती है। तो हम जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं ना आज हमारे 11th 12th 10th के क्लासेस में, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कुछ भी हो, ये आगे जाके हमें यूज में आती है। जैसे आज मुझे, अगर मैं नहीं पढ़ता कि कितने प्रकार के मेटल्स होते हैं, क्या होता है, तो शायद मैं वो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है हार्ड डिस्क की, वो शायद उतने अच्छे से समझ नहीं पाता। तो ये हमको जो पढ़ाया जा रहा है वो फिजूल का नहीं है। और आपको एक चीज जान के खुशी भी होगी, और ये पता भी होना चाहिए कि एनसीईआरटी जो है, जो बोर्ड है हमारा, उसके अंदर जो लोग करिकुलम डिजाइन करने के लिए बैठे हैं ना, वो बहुत सक्सेसफुल लोग रहते हैं और वो लोग वो बुक को लिखते हैं। तो हमको जो पढ़ाया जा रहा है वो ऐसे ही नहीं पढ़ाया जा रहा है, उसमें बहुत सारे लोगों ने मेहनत करके वो कंटेंट को डिजाइन किया है। तो इट्स अ वेरी गुड बुक, यू शुड फॉलो व्हाट इज देयर। एंड क्वेश्चन के लिए आप विजय प्रभु से भी पूछिए, और अगर आपको उनके आंसर्स कन्विंसिंग लगते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यू कैन गो टू द नेक्स्ट लेवल, गो टू गूगल, चैट जीपीटी, यूट्यूब, सब जगह से अपने क्वेश्चंस को आंसर करने की उसको अनआंसर्ड मत रखिए बस। थैंक यू वेरी मच प्रोजेक्ट, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली अभी हम लोग सेशन एंड कर रहे हैं क्योंकि बच्चों को जाना होगा। तो मैं सारे बच्चे सुन रहे हैं मेरा आवाज? सारे बच्चे, मैं सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि उन्होंने उनका इतना वैल्यूएबल समय आज हमें दिया है, तो सारे बच्चे अपने ऐसे दोनों हाथ ऐसे ऊपर करके, ऐसे हाथ ऊपर कर लो, सब लोग ऊपर करो। सारे बच्चे अपने दोनों हाथ ऊपर करके, सुबह मेडिटेशन के टाइम पे हम जो हरे कृष्ण महामंत्र मंत्र बोलते हैं, बोल के दिखाता हूँ पहले, ये सबको साथ में बोल रहे हैं, मैं पहले बोल के दिखाता हूँ। कुछ मंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा मंत्र है। हम सब लोग एक साथ मिलके जस्ट प्रोजेक्ट के लिए बोलेंगे, क्योंकि इतना समय उन्होंने हमें हमें दिया। लेट अस स्टार्ट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच प्रोजी। थैंक यू। अब हम यहाँ से मीटिंग आउट कर देते हैं क्योंकि टाइम्स आके बाहर रुके हैं, बट थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, प्लेजर टू स्पीक टू ऑल ऑफ यू। Thank you so much, Prabhuji. Yes, ऑनलाइन अभी क्वेश्चन। अभी अंतरंगा माता जी, आप अपनी मीटिंग कंटिन्यू कर सकते अच्छा, ओके ओके। हैं। Uh, uh, प्रभु जी, आई थिंक जस्ट क्वेश्चन आंसर सेशन देने का ही प्लान था अभी। तो जैसे चैट पे एक क्वेश्चन था किसी स्टूडेंट से, तो मे बी यू कैन आंसर दैट, एंड और किसी को क्वेश्चन है तो दे कैन रेज देयर हैंड्स। ओके Actually, we are over the time. We can continue for 5 more minutes, maybe. हाउ लॉन्ग वी कैन गो सो दैट मैं उसी हिसाब से आंसर दूंगा, Uh, बिकॉज क्वेश्चंस तो आए जा रहे हैं। okay. I think 10 more minutes if it is fine for you, Prabhuji. आई एम हैविंग टाइम टिल 8:30। Okay, okay. We can continue till 8:30, Prabhuji, then. अच्छा, ओके Yes. ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है ओंकार क्षीरसागर का। अच्छा अंजना माता दी, आई जस्ट वन क्वेश्चन फॉर यू। Mm-hmm. मुझे समझना था कि जो स्टूडेंट्स अभी ऑनलाइन है वो लोग कौन है, मतलब उनका बैकग्राउंड क्या है। Prabhuji, as far as I know, even I'm not very much aware of it. Most of them are 11th, 12th pass outs, 12th pass outs, and few of them are doing their engineering, as far as I know.
Okay, okay, okay. Is that correct, Srushti? माता जी ऑलमोस्ट 90% इंजीनियरिंग के फर्स्ट या सेकेंड ईयर। Yes. Okay, ठीक है. Thank you. Thank you for answering this question, Mataji. Okay, so coming to the question of Omkar Shirsagar, he had a question regarding machine learning and data science from first year. He has been studying, and now in the second year. But I don't know how much machine learning is needed for joining an internship, and also is the MLOps essential for data scientist? So answering your second part, MLOps essential है क्या? MLOps essential है. आज सभी को MLOps आना चाहिए, ये बेसिक रिक्वायरमेंट रहता है. मशीन लर्निंग जो है अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट फील्ड है, और उसके साथ साथ MLOps मशीन लर्निंग को ही हेल्प करता है. तो इट्स वेरी गुड टू हैव नॉलेज ऑफ MLOps. तो और कमिंग टू इंटर्नशिप सेक्शन, इंटर्नशिप्स के लिए अभी जो जनरली जो चल रहा है वो जनरेटिव एआई के अंदर इंटर्नशिप्स ज़्यादा हैं. मशीन लर्निंग एज अ टॉपिक नाउ इट इज़ नॉट वेरी वेरी रियली यूजफुल नाउ. ज़्यादा करके जनरेटिव एआई और एआई एजेंट्स के ऊपर काम अभी मार्केट में ज़्यादा हो रहा है. गुंजन पंच पांडे, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम. आपको भी धन्यवाद, प्रणाम. हरे कृष्णा. हाउ टू बी स्टेबल इवन व्हेन योर बर्डन इज इंक्रीजिंग व्हाइल परस्यूइंग इंजीनियरिंग? स्टेबल रहने का सबसे अच्छा तरीका है फोन के अंदर से जितने भी अनवांटेड एप्स हैं वो हटा दो. सो यू विल गेट अ लॉट ऑफ टाइम फॉर योरसेल्फ. क्योंकि हम लोगों को जब भी थोड़ा भी अनस्टेबिलिटी होती है हम लोग उधर टाइम ज्यादा स्पेंड करना शुरू कर देते हैं. गेट योरसेल्फ आउट ऑफ द वर्चुअल वर्ल्ड. राइट डाउन योर टास्क. आपके जो भी टास्क एक्चुअली में पेंडिंग है उनको लिखिए, डायरी के अंदर लिखिए, और उसके ऊपर फोकस करके एक एक करके वो सारे टास्क को कंप्लीट कीजिए. जो खुशी आपको वो टास्क को कंप्लीट करके मिलेगी वो आपको और कहीं नहीं मिल सकती. और बर्डन जब बढ़ेगा तो आपको वो बर्डन कम करने के लिए वही तरीका है कि आपको वो जो टॉपिक्स हैं जो जो पेंडिंग है. एक्चुअली हमें जो स्ट्रेस आता है ना वो काम, पेंडिंग काम जब बढ़ता रहता है उससे स्ट्रेस आता है. हम जब रेगुलर रहते हैं और काम हम लोग करते रहते हैं तो स्ट्रेस नहीं आता. काम करने बंद कर देने से भी स्ट्रेस आता है. दिन भर खाली भी नहीं बैठ सकते. So it's very important for you to keep, emptying your backlogs. It's very important. I hope this answers your question, Gunjan. Vikrant Doke. If you want to unmute yourself, you can unmute also, no problem. हरे कृष्णा प्रभु जी. Hare Krishna. सर प्रभु जी, माय क्वेश्चन वाज, मतलब मैं अभी जावा कर रहा था, मतलब जावा कंप्लीट हो गई थी और मैं डीएसए में डीएसए स्टार्ट करना चाहता था. मतलब मेरे को ओवरऑल डेवलपमेंट जावा में करनी है. हाँ. तो मेरे दोस्त से, मतलब मेरे दोस्त मेरे को रेफर कर रहे हैं कि तू पाइथन कर, मतलब पाइथन आजकल पाइथन एआई एमएल में भी चल रहा है और पाइथन से डेवलपमेंट भी हो रही है. तो वो कह रहे थे कि जावा शायद नहीं चलेगी. तो मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट जावा में है, तो शुड आई कंटिन्यू इन जावा और शुड आई स्विच टू पाइथन? आपका जो प्रश्न है वो इस तरह से है कि मुझे तमिल सीखनी चाहिए या तेलुगु सीखनी चाहिए या मराठी सीखनी चाहिए. दिस इज योर क्वेश्चन. दिस इज नॉट द राइट क्वेश्चन टू आस्क कि मुझे लैंग्वेज कौन सी सीखनी चाहिए. आपको काम क्या करना है उसके हिसाब से आप चीजें आगे कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एआईएमएल में जाना है तो जावा यूजफुल नहीं रहेगा. अगर आपको वेबसाइट डेवलपमेंट में, बैकएंड में जाना है, डेटा इंजीनियरिंग में जाना है तो वहाँ जावा हेल्पफुल वहाँ होता है. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका एंड गोल क्या है. जो एंड गोल रहेगा उसके हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है. उस हिसाब से आपको अपने लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है. मैंने जावा भी सीखी है, मैंने पाइथन भी सीखी है, मैंने C++ भी सीखी है. लेकिन एट द एंड होता ये है कि आपका जो काम रहता है ना उसके हिसाब से आप अपनी लाइफ में लैंग्वेज को सिलेक्ट करते हो. डेटा स्ट्रक्चर्स अक्रॉस द लैंग्वेजेस सेम रहने वाले. लिस्ट, डिक्शनरीज, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बुलियन, ये सब सेम रहता है सब जगह. कोई डिफरेंस नहीं आता. जावा एज अ लैंग्वेज बहुत हेवी ऑन सिंटैक्स है. इट्स वेरी वेरी स्ट्रिक्ट लैंग्वेज एज फार एज द रूल्स आर कंसर्न्ड. जैसे कि आपको फाइल नेम और क्लास नेम सेम लेना होता है. ये सब चीजें जो रहती है जावा के अंदर रहती है. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप एक्चुअली में इंडस्ट्री में काम करोगे ना आपके लिए एक बहुत बड़ा बर्डन बन जाता है इतना रूल्स याद रख पाना. क्योंकि इंडस्ट्री में आप यू फोकस ऑन गेटिंग थिंग्स डन, यू डोंट फोकस ऑन द लैंग्वेज साइड ऑफ थिंग्स. क्या फर्क पड़ता है. आज मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, अगला सेंटेंस अगर मैं इंग्लिश में भी बोलूंगा तो आपको मैसेज जाना चाहिए, है कि नहीं. तो आपको अगर कंफर्टेबल है जावा
के अंदर डेटा स्ट्रक्चर सीखना, तो आप सीख सकते हो, बट इट्स नॉट कंपलसरी। और अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हो तो लर्न अ लैंग्वेज विच कैन बी इजीली लर्न रेदर देन आप वो लैंग्वेज के सिंटैक्स और उसके रूल्स को याद करते बैठो। ऐसा मुझे लगता है। तो मुझे पर्सनली, इफ यू आस्क मी, मुझे पर्सनली जावा इतना पसंद नहीं है। इट कैन वेरी, फॉर यू इट माइट बी अ डिफरेंट थिंग, बट या मुझे इतना पसंद नहीं, मुझे पाइथन ज्यादा अच्छा लगता है। और मुझे पाइथन के अंदर ही मैंने सारे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम को सॉल्व किया है, तो मुझे वही थोड़ा सूटेबल लगता है। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा, थैंक यू। We'll go to the next. Chandrapur Radhika Birajdar, you want to ask a question? Hare Krishna Prabhuji, Dhanavad Pranam. Am I audible? Yes, Hare Krishna, Dhanavad Pranam. First of all, thank you for this wonderful session. So my question was like, मतलब मैंने रेखा पाटिल माता जी जो है इस्कॉन भूसावल से, उनके एक सेशन में सुना था कि हमें इस कॉन्शियसनेस से स्टडी करना चाहिए कि वी आर स्टडिंग फॉर कृष्णा। मतलब जिससे हम मतलब एजुकेटेड तो होते ही, और मतलब इस्कॉन में भी बहुत सारे डिवोटीज है जो हाई पोस्ट पे थे, जैसे राधे श्याम प्रभु जी है और गौरांग प्रभु जी वगैरह, तो उन्होंने वो छोड़ के ब्रह्मचारी जीवन एक्सेप्ट किया। तो मतलब क्या कह सकते हैं, मतलब हम नॉन डिवोटीज को दिखाना, आई मीन मतलब उन्हें फील कराना चाहते हैं कि मतलब हम इतने एजुकेटेड होके भी हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में है। सो ये कॉन्सेप्ट कहाँ तक राइट है, या फिर मतलब यस दैट वाज द क्वेश्चन। Yes, Mataji. Actually, bhakti जो होती है ना, bhakti is there for us to bring closer to Krishna, not to prove anyone anything. भक्ति जब हम कर रहे हैं ना, तो ये हम हमारे भगवान के साथ में संबंध को पुनर्स्थापित करने के लिए कर रहे हैं। अब उसमें अगर किसी और को कुछ देख के लगता है, अगर हम उन्हें इंस्पायर कर पाते हैं किसी चीज को लेके, या अगर हमारे जीवन शैली से, हमारे जीवन जीने के तरीके से उनको इंस्पिरेशन मिलता है, तो वो एक बाई प्रोडक्ट है, वो अच्छी बात है। बट हमारा प्राइमरी फोकस भक्ति करने का होता है कि हम भगवान कृष्ण से निकट जाना चाहते हैं, उनके उनके साथ हमारा संबंध पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। तो हमारा फोकस भक्ति करते समय ये होना चाहिए। और जैसे जैसे आप भक्ति करोगे, आप आगे बढ़ोगे अपने जीवन में, कृष्ण आपके जीवन में इतनी सफलता वैसे ही दे देंगे कि आपको किसी को कुछ प्रूफ सेपरेटली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज मुझे किसी को भी कोई चीज सेपरेटली प्रूव नहीं करना है, लोग देख के समझ जाते हैं कि हम लोग भक्ति भी कर रहे हैं, हमारी लाइफ को भी मैनेज कर रहे हैं, और हमारी लाइफ में सब अच्छा अच्छा हो रहा है। और आने वाले 10 साल बाद जब हम लोग देखते हैं ना, तो यही लोग जो हमें जिन्हें हमें हमारे मन से इम्प्रेस करने का मन होता है कि हमें हमें इन चीजों को, इन लोगों को इम्प्रेस करना चाहिए हमारी भक्ति से, वो खुद देखते हैं और वो खुद जुड़ते चले जाते हैं, अगर हम हमारे जीवन में सही पाथ पर चलते रहते तो हम लोग किसी की मानसिकता चेंज नहीं कर सकते माता जी। whoever is there you cannot change। आप एक छोटे बच्चे की भी मानसिकता को चेंज नहीं कर सकते। वो जैसे आपने अगर सुना होगा, श्रील प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज है, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो एक बात बोलते थे कि यू शुड प्रीच 24 hours a day, and if required you should speak also। इसका मतलब ये है कि हमें उन्हें हमारे हमारे जो जीवन के अंदर जो हमारे अचीवमेंट्स है ना, और हमारे जो एक्शंस है ना, उनके थ्रू प्रीच करना चाहिए, बोल के नहीं। और जरूरत पड़े तो बोल सकते हैं, लेकिन हमारे जीवन से वो वैसे ही सब सीख जाएंगे। Thank you very much, Prabhuji, for your answer. Now it is clear in my mind. Thank you. माता जी, Hare Krishna, Dhanavad Pranam. So we had one more question. Shreya, is Shreya here? Shreya is here. Okay. Recently, I have given second attempt of JEE, so I'm curious to know what about skills one should have before entering the engineering college. आपके मन में पहले ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको कौन सी फील्ड में आगे करियर परस्यू करना चाहिए, एंड यू शुड टेक अ ब्रांच अकॉर्डिंगली, उस पर फोकस कीजिए। क्योंकि अगर आपको कंप्यूटर साइंस में आगे जाना है और आप माइनिंग या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर मैकेनिकल लेके बैठ जाएंगे, तो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। then you will later on feel very bad। So if you are planning to pursue computer science, तो अभी अगर आपके पास छुट्टियों का समय है और आपका JEE हो चुका है और बाकी सब चीजें भी हो चुकी है, यूट्यूब पे बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं। आपको अगर टाइम मिलता है और आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बट इट्स नॉट कंपल्सरी दैट यू शुड डू इट। अभी के लिए आप वो कीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए,
छुट्टियों को भी इंजॉय करना चाहिए कभी कभी। तो क्योंकि कॉलेज में जैसे ही आप जाओगे आपको ऑलरेडी बहुत वर्कलोड आएगा, तो दैट टाइम यू कैन प्रोबेबली टेक अप ऑल दीज थिंग्स। बट अगर आपको थोड़ा भी मन में अगर इच्छा होती है कि मुझे पढ़ाई करना है और चीजें एक्सप्लोर करनी है, तो आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुरू कर सकते हो, वो पढ़ना शुरू कर सकते हो, डेटा स्ट्रक्चर उसके अंदर पढ़ सकते हो। देर आर मेनी यूट्यूब वीडियोज विच विल टीच यू पाइथन एंड डेटा स्ट्रक्चर्स इन पाइथन। आप वो पढ़िए। और leadcode.com करके वेबसाइट है, उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। आई विल राइट इट डाउन फॉर यू, leadcode.com। Okay, Roshi, before that, sorry to interrupt. There was one more question from Krishna. I'm not sure if you have taken. okay, sorry, वो मिस कर गया मैं। हाँ, No problem, Roshi. Should I read out that for you or you can read? Okay. So the question is, I have done internships in front-end Python and with data science and AI ML. Now I'm learning Django for back-end development. Would you suggest something for me? Any internship opportunities you would like to provide? so personally, I don't have internship opportunities right now in my career, my company right now. If I would have had, I would have been happy to take you. And as far as what I can read from you, you have done Python, you have done front-end AIML, Django. This is very good. Keep learning these things. इनको थोड़ा और strong कीजिए। ये जो टॉपिक्स हैं इनको आप अच्छे से कुछ प्रॉम्प्ट्स देके चैट जीपीटी को अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए भी बोल सकते हैं, एंड दैट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल। अगर टाइम परमिट करेगा तो मे बी आई शो यू हाउ यू शुड यूज चैट जीपीटी वेरी वेल। बट अभी के लिए आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, इन टॉपिक्स को थोड़ा स्ट्रांग कीजिए। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम बहुत अच्छे से आपको आनी चाहिए। This is something very useful for everyone. I'll share a link for everyone here जो भी यहाँ पे हैं। उसमें डेटा स्ट्रक्चर्स का एल्गोरिदम कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, मेटा के एक रिक्रूटर ने मुझे भेजा है। तो उसमें वो एग्जैक्टली हमें बताते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम में क्या क्या हमें पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है। इस ओके, लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। एम आई अलाउड टू शेयर? अच्छा, मैं होस्ट नहीं हूँ तो मुझे अलाउड नहीं है। अंदरंगा माता जी, कैन यू ओपन दिस लिंक एंड शेयर योर स्क्रीन इफ पॉसिबल? या अगर आप फोन से हैं तो मुझे परमिशन दे दीजिए, आई विल शेयर। Let me see, Proji, if I can give you a permission to share. अच्छा, यू आर द होस्ट नाउ, ठीक है, आई कैन शेयर। देखिए, दिस इज समथिंग नो यू डोंट गेट एवरीवेयर टू सी, ओके? इसलिए मैं सोचा आपको बता देता हूँ ये सब चीजें। लेट मी नो वंस यू आर एबल टू सी द स्क्रीन। It is visible, Proji. विजिबल, ओके। फर्स्ट क्लास। क्या दिख रहा है आपको? There is a document which we can see in initial interview guide. फ्रॉम मेटा, राइट? Yes. तो ये जो गाइड है ना, इसमें हमें बताया जाता है कि इंटरव्यू प्रोसेस कैसा होता है। कोई भी कंपनी जो रहती है वो इंटरव्यू में हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है। कोई भी, इट कैन बी एनी इंटरव्यू इन द वर्ल्ड, इट कैन बी एनीथिंग रिलेटेड टू अ टेक्निकल इंटरव्यू, ओके, स्पेसिफिकली फॉर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटरव्यू। तो उसमें इंटरव्यू प्रोसेस के अंदर हमेशा ये चीज ध्यान रखना, आपके पास में पहला क्वेश्चन हमेशा ये आएगा कि इंट्रोडक्शन, आप अपने बारे में बताइए, क्या आपका इंट्रोडक्शन है। तो उसमें आपसे सबसे पहले वो ये पूछने की कोशिश करते हैं कि आपके बारे में जितना कम समय में आप जितना ज्यादा बता सकते हो। यू शुड ऑलवेज हैव दिस थिंग प्रिपेयर्ड। प्रिपेयर अ कॉन्साइज इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ हु यू आर, वेयर यू हैव ट्रेन्ड एंड वर्कड, एंड व्हाट आर योर एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज। ये 3 पॉइंट्स रहते हैं हमारे, जब हमें हमारा इंटरव्यू, जब आपसे कोई पूछता है कि कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ये 3 एस्पेक्ट्स है जो हमें कवर करके बताना चाहिए। अगले कुछ मिनट्स तो होते हैं जो मैंने भी ऑब्जर्व किया है, 35 to 45 मिनट्स हमसे कोडिंग के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, और लास्ट में हमें वो 5 मिनट देते हैं कि हम उनसे हमारे प्रश्न पूछ पाए, अगर हमें कुछ प्रश्न रहते हैं कुछ। पर ओवरऑल जो रहता है, हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, आपके पास में कोडिंग के लिए, कोडिंग का जब प्रश्न पूछा जाएगा तो सिर्फ कोडिंग नहीं पूछी जाती, वो आपसे क्या क्या देखने की कोशिश करते हैं। व्हाट वी लुक फॉर इज कम्युनिकेशन। अगर आपको कोई प्रश्न पूछा गया है आपसे, तो आप उस प्रश्न में उनसे किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हो। आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है तो आप उनसे किस लेवल पे, सॉरी, आप उनसे कितना डिटेल में जाके उस क्वेश्चन के बारे में क्लैरिफिकेशन ले रहे हैं,
उसकी रिक्वायरमेंट समझने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप डायरेक्टली कोडिंग करना शुरू कर रहे हो। तो जब हमारे पास में कोई प्रॉब्लम आती है, इफ यू गेट एनी प्रॉब्लम फॉर योर सेल्फ टू बी सॉल्व, whether you ask the right questions to the interviewer, that tells how much good your communication. Or initial text screen should be a conversation, so don't forget to ask questions. Always ask questions in the interview. हम लोग डर जाते हैं हमारे इंटरव्यूज के अंदर, हम उनसे कुछ नहीं पूछते, तो हमें पूछना चाहिए। फिर दूसरा होता है वो हमसे प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में एक्सपेक्ट करते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड, एक अर्जेंट कॉल आ रहा है। प्रभु मैं एक मीटिंग में हूँ, अर्जेंट है कुछ, बोलिए बताइए। हाँ so we just have 2 more minutes, okay? So just simply problem मैंने पहले बताया कि कम्युनिकेशन, दूसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग, तीसरा कोडिंग। मतलब जब कोडिंग का क्वेश्चन ये रहता है तो आपसे समझने की कोशिश करते हैं कि आप उस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच कर रहे हो। और लास्ट इज वेरिफिकेशन, कि आप जब वो उसको सॉल्व करके बैठ चुके हो तो आप खुद से लेवल से कितना वेरीफाई कर रहे हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर आप लोग आपके साइट पे इसको ओपन कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं आपसे शेयर कर दूंगा आंदोलन का माता जी, whoever asks they can probably look at it. So ये कुछ चीजें रहती है। तो ये पूरा एक डॉक्यूमेंट है जिससे हमें पता चलता है कि हमें कैसे, कहाँ से कौन से रिसोर्सेज रहते हैं जिससे हमें प्रिपेयर करने को चाहिए। मेटा सैंपल इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस, लीड कोड, हैकर रैंक, कुछ कुछ बहुत अच्छी चीजें हैं यहाँ पे। सो आई थिंक इट शुड बी वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। आई थॉट आई शुड शेयर दिस विथ यू। whoever wants to prepare themselves, ये बहुत अच्छा गाइड है। ओके तो व्हाट टू करना है, टॉपिक्स ऑफ क्या क्या टॉपिक्स है, एरे, लिस्ट, स्टैक क्यूज, हैश मैप, सॉर्टिंग एल्गोरिथम, ट्रीज, ग्राफ, रिकर्शन, ये सारी चीजें। फाइनल टिप्स, हमेशा ध्यान रखिए कि डोंट ट्राई टू बिकम समबडी एल्स। आप जैसे हैं वैसे रहिए। इंटरव्यू क्लियर करने में फोकस मत कीजिए। आप इस इंटरव्यू के थ्रू वो कंपनी के साथ में इंटरेक्ट कीजिए, खुद को जानने की कोशिश कीजिए आपको कितना आता है। टेक अ फीडबैक एंड इम्प्रूव ऑन योरसेल्फ, एंड प्लीज टेक टाइम टू रियली प्रिपेयर। एंड एट द एंड हमेशा एक थॉटफुल क्वेश्चन इंटरव्यूअर्स के लिए भी पूछना चाहिए हमें। सो योर इंटरव्यूअर में चैलेंज योर आइडियाज, एंड यू शुड be able to ready to speak not only what you recommend or have experience, but it is very well important to think। कहाँ गया ये? बेसिकली इतनी सी बात है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप उनसे एक ऐसा प्रश्न पूछें जो आपके लिए उस कंपनी को जाने के लिए बहुत जरूरी हो। जैसे आपकी जो टीम है उसके बारे में पूछ सकते हैं कि जिस टीम को मैं ज्वाइन करने वाला हूँ उसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए। तो कुछ चीजें ऐसी रहती है जो हमें पूछ लेना चाहिए। तो ये सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। Yes, Proji. Thank you so much, Proji. We are very grateful that you have extended by half an hour for all of us. So we are really grateful. Thank you so much, Proji. We are getting more questions, but we are already out of time. So maybe if we get more of your time, we can arrange another session in future, maybe, so that you can answer the rest of the questions. Thank you, Proji. We can conclude the session. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna.